آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے خداوند متعال کے لیے، درود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، اور لعنت ہے ان کے قاتلوں پر، ان کے دشمنوں پر، ان سے بغض رکھنے والوں پر، ان کا حق کھانے والوں پر، ان کے حق کو غصب کرنے والوں پر۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 7 رجب المرجب 1447 ہجری قمری ہے اور 28 دسمبر 2025 عیسوی ہے، اور ہم اپنا پروگرام 14,000 اسپانسر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے سے آپ سب کو اپنے گروپ میں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے خانوادے سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے پیارے عزیز مولانا سید خادم عباس حسینی صاحب کی طرف۔ جی، میں بھی سلام عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں اور ہمارے معزز ناظرین کی خدمت میں کہ اس پروگرام کو بہرحال مشاہدہ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور ہر روز ہمارا ایک نہ ایک موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے۔ تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، گفتگو ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ کام کرتا ہے اور جو اپنا روزگار کے سلسلے میں گھر سے نکلتا ہے، تو رزق جو ہے وہ انسان جو ہے وہ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ تو آج کی جو ہماری موضوع ہوگی، وہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ رزق میں کس طریقے سے برکت آ سکتی ہے، اور یہ موضوع نہایت ہی اساسی موضوع ہے، چونکہ انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں رزق تو کماتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں آتی۔ تو یہ برکت جو ہے وہ کس طریقے سے آ سکتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو کسی نیک راہ میں خرچ کرے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم اپنے پروگرام کو سلسلہ وار آگے بڑھاتے رہیں گے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں ہمارے پروگرام کا موضوع ہے 14,000 اسپانسر۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ سب ہمارے اس اسپانسرشپ کو حاصل کیجئے، اور آپ سب بھی اس خانوادے کا حصہ بن جائیے۔ اور ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر کی آج 8ویں قسط ہے، اور باقی 6 قسطیں موجود رہیں گی انشاءاللہ نیکسٹ ڈیز میں۔ پروگرام کا ٹائم عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے کے دوران ہوگا، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران ہوگا، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے دوران، اور بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق رات 11 بجے سے لے کر 1 بجے کے دوران رہے گا۔ اس پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے، اور 6 جلسات اس کے باقی ہیں۔ ہر رات میں آپ اس پروگرام کو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں QR کوڈ بار کوڈ اسکرین پر موجود ہے، اس کو آپ اپنے موبائل کے کیمرے سے اسکین کریں گے تو آپ کی واٹس ایپ کال مل جائے گی، اور آپ اس طریقے سے موبائل نمبر سیو کیے بغیر بھی کال کو آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ میں کر سکتے ہیں، اور آپ کی کال کو لائیو نشر کیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے آپ
मुस्तकिल हिस्सेदार बन जाएंगे, स्पॉन्सर बन जाएंगे। और साथ साथ 00964729911424 ये नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है। इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करेंगे तो इस नंबर पर भी आप कॉल करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ग्रुप के इस प्रोग्राम में आप शरीक हो सकते हैं। आइए कदम बढ़ाते हैं। और जिस तरीके से भाई ने आपकी खिदमत में फरमाइश पेश की कि रिज़्क में इजाफ़ा की कुंजी क्या है, रिज़्क में इजाफ़े का फार्मूला क्या है, हम रिज़्क में इजाफ़ा कैसे कर सकते हैं, रिज़्क में इजाफ़ा करने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम रिज़्क की बात कर रहे हैं। रिज़्क एक ही किस्म का नहीं होता। रिज़्क माल भी है, रिज़्क इल्म भी है, रिज़्क इज़्ज़त भी है, रिज़्क शोहरत भी है, रिज़्क तालीम व ताल्लुम भी है, रिज़्क हर वो चीज़ जो अल्लाह की तरफ से नेमत है वो रिज़्क है। इसमें इजाफ़े के लिए बात कर रहे हैं हमारे अज़ीज़। बिस्मिल्लाह। जी क़िबला, जिस तरीके से आपने वजाहत फरमाई कि हर चीज़ जो है वो सिर्फ ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, या मुराद ये है कि जो नेमात है उसी को हम जाकर रिस्क समझें। अलबत्ता नेमात से मुराद कुछ बातनी रिस्क भी होते हैं और जो असास में होते हैं। जैसे इल्म जो है वो एक रिस्क है, खुशबख्ती जो है वो रिस्क है, इंसान की खुशहाली जो है वो रिस्क है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो रिस्क में शुमार होती है। और अल्लाह से जब रिस्क का मुतालबा किया जाता है तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। लेकिन जहाँ इंसान जो है वो काम कर रहा है और ज़ाहिर है कि कमाई कर रहा है किसी न किसी तरीके से। अब हर शख्स जो है वो अपने एतबार से, कोई बिजनेसमैन है, कोई जो है वो सोशल वर्कर है, कोई जो है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वगैरह। तो इससे जो इंसान का रिस्क हासिल होता है इसके नतीजे में, तो इस रिस्क में से इसका एक फार्मूला ये है कि रिस्क को किस तरीके से जो काफ़ी हो जाए। चूँकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक शख्स जो है महीने में करोड़ कमाता है, लेकिन वो करोड़ उसके पूरे महीने के लिए काफ़ी नहीं होता। और बस औक़ात ऐसा होता है कि जैसे इंसान 10,000 कमा लेता है लेकिन वो उसके एक महीने से ज़्यादा हो जाता है। तो ये होती है बरकत। तो वो बरकत का जो फार्मूला है वो ये है कि राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपने रिस्क को आप रख लीजिए, और ये तज़मीन और ज़मान और ज़मानत जो है जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का है उसको आप हासिल कीजिए। बिल्कुल, ये तज़मीन, ज़मानत, गारंटी या बीमा करना कह लीजिए, ये तब हासिल होगा जब हम इस अपने रिज़्क में से कुछ हिस्सा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम के लिए वक्फ़ करने लगेंगे। देखिए, जब आप अपने माल को महफूज करना चाहते हैं तो उसका सदका देते हैं, उसको हिफाजत करने के लिए नेक कामों में खर्च करते हैं, उस माल की हिफाजत करने के लिए उस काम को नेक मसरफ़ में इस्तेमाल में लाते हैं, हकदारों तक उसका हक पहुंचाते हैं, किसी नाहक सूरत में उसे हासिल भी नहीं करते। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि रिज़्क की हिफाजत करनी चाहिए। तो बहरहाल एक जुमला मुतरज़ा जो जिसे हम बड़ी कुतुब में फ़फ़हम के लफ्ज़ से भी इस्तेमाल कर देंगे, समझने सोचने की बात यह है कि जब भी बात माल रिज़्क की आती है तो हमारे खुश्क मुत्तकी दोस्तान जो हैं वो इस बात के ऊपर ज़ोर देते हैं कि हर वक्त माल 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 क्या है। देखिए, फ़िक्र मईशत भी दीन का हिस्सा है। जी बिल्कुल। जो हद ये है कि फ़िक्र मईशत के बारे में अहादीस में इतनी सख्त बयानात आए कि जो जिसके अंदर फ़िक्र मईशत नहीं है उसका दीन ही नहीं। जी बिल्कुल सही। यानी फ़िक्र मईशत करना दीन का एक हिस्सा है। रिज़्क़ हलाल हासिल करना, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी। हद ये है कि यहाँ तक भी आया कि साल भर के अखराजात के बारे में इंसान को अंदाज़ा लगा के रखना चाहिए। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ज़ाहिरी बात है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को हासिल करना। देखें, दुनिया बिल अम्वाल वल आखिरत बिल आमाल, जब ऐसी बात है, दुनिया माल के ज़रिए, आखिरत आमाल के ज़रिए, दोनों के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरीके से इकनॉमिक्स की जब इब्तदा रखी गई तो उसके अंदर माल 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 पर बहस आई तो उसे इल्म कुफ्र करार दिया गया। सही, इल्म कुफ्र करार दिया गया और उलमा ने फतवे दिए इसका पढ़ना हराम है और इस पे तालीम और ताल्लुम और किताबें लिखना हराम है वगैरह वगैरह। बहरहाल बाशऊर लोग समझते हैं कि फ़िक्र मईशत को शरई एतबार से इस्तेमाल करना, फ़िक्री स्ट्रेटजी जो भी है इसको इस्तेमाल करना, ये इस्लाम का नज़रिया है और इस्लाम ने इस पर खुसूसी तवज्जो दिलाई है। देखिए, ज़कात है,
आगे बात को आप बढ़ाइएगा। सही جی بسم اللہ، بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے اور بڑے ظریف نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ بعض تنگ نظر لوگوں نے یہ کہا کہ گویا کہ اس طریقے سے انہوں نے پیش کیا کہ گویا اسلام جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی فقر کی تعلیم دے رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ فقیر ہو جائے اور نااہل لوگ جو ہے وہ اس میں وہ چھپ جائے، چونکہ نااہلی ہوتی ہے، لوگ جو ہے ان کی وجہ سے پریشان ہے، تو ان کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جو حالات تھے اور جو کفار کی طرف سے تو وہ ایک ظلم، لیکن عام حالات میں اس طریقے کا نہیں ہے، بلکہ خود اس موضوع کے اوپر باقاعدگی سے جیسے آپ نے فرمایا کہ اقتصاد کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے مومنین کی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ جس طریقے سے یہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو دین خود نور اہل البیت علیہ السلام کو آپ کے گھر تک پہنچا رہا ہے، تو یہ خود یہ ٹی وی بھی مومنین کا اثاثہ ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ مومنین کی ملکیت ہے۔ تو لہٰذا مومنین جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ضرور ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے جس طرح اقتصاد دین پر آپ نے بات فرمائی کہ اقتصاد اور معیشت دینی فکر کا ایک حصہ ہیں، کہ جس طریقے سے اسلام نے دیکھیں معیشت کو اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہا تو اس میں زکوٰۃ کو شامل کیا، خمس کو شامل کیا، اسی طریقے سے اسلام نے عشر کو شامل کیا، 10واں حصہ ان لوگوں پر، اب زکوٰۃ کی اقسام بتائیں، اسی طریقے سے خمس کی بھی اقسام بتائیں، پھر اسی طریقے سے حج کب واجب ہوگا ان کی شرائط میں بھی مال کے حساب سے کہا۔ اسلام نے بوجھ نہیں بنایا، یقیناً بالکل بوجھ نہیں بنایا، کہا کہ اس حد تک پہنچو گے۔ پتہ چلا کہ ہر دور کی ایک کیفیت ہے اور ہر زمانے میں وہ کیفیت لاگو ہے، کیونکہ اسلام دین عقل ہے۔ تو اس نے ہمیں سمجھایا کہ کہاں تک پہنچو گے تو آپ اس زمرے میں شامل ہو جاؤ گے، فکر کرنی ہے، یہاں سے یہاں تک فکر کرنی ہے۔ یہ اکنامکس کی ایک قسم ہوگی کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، خمس ادا کیا جائے، یا آپ کے اوپر جو حقوق ہیں کہیں سے پڑا ہوا مال مل جائے اس میں سے کس طریقے سے پیمنٹ کرنی ہے، کیا ادا کرنا ہے، یا اسی طریقے سے حق المہر، یہ بھی فکر معیشت کی ایک قسم میں آ گیا تاکہ خاتون کسی طرح بے بہرا نہ رہے۔ اور اسی طریقے مرد کا حصے دو ہوں گے، ایک خاتون کا ایک حصہ ہوگا، یا آدھا کہہ لیں مرد کا پورا حصہ کہہ لیں، اس طرح بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی معیشت کو مورد نظر قرار رکھا گیا ہے۔ جی بالکل بالکل، اور ہمارے انہی روایات اور ان چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے مذہب شیعہ کے علماء نے باقاعدہ اس حوالے سے کتابیں لکھی ہے، جس میں سے مشہور کتاب جو ہے وہ الاقتصاد ہے۔ اقتصاد کے بہت سارے مصنفین ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ شہید آیت اللہ سید حسن شیرازی، جن کو لبنان میں شہید کیا گیا تھا، بحثی حکومت کے ہاتھوں ان کی شہادت واقع ہوئی تھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الاقتصاد کے نام سے، اور اس میں باقاعدہ اسلامی طریقے سے جو ہے وہ اقتصاد کو کس طریقے سے چلانا ہے اور اقتصاد کی کیا اہمیت، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ اقتصاد کے ساتھ جڑی ہے، چاہے وہ حج ہے یا حتی نماز۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی انسان جو ہے وہ ایک زمینہ فراہم کرے گا تو انسان جو ہے وہ اسلامی احکام کو انجام دے سکے گا۔ تو بڑی اہمیت ہے اس کی، اور جو قوم کے اثاثے ہیں اس میں سے آج کل کے دور میں جو جدید میڈیا جو خدمات انجام دے رہے ہیں اور پروگرامز کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص تو یہاں پہ عطبات نہیں آ سکتا، تو یہاں کے نور کو جو وہاں پہنچایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے مومنین کے یہ اثاثے ہیں اور ان کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی، ہمیں ہر وہ طریقہ جو دین کو گسترش پھیلاؤ دینے کا سبب بنے، دین کا پرچار کرنے کا سبب بنے، دین کو ہمارے گھروں تک پہنچانے، دین کے نور کو ہمارے گھر تک پہنچانے کا سبب بنے، اس میں ہمیں اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ اب پرانا طریقہ کار، بار بار ہم یہ بات اس لیے دہراتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ذہن نشین رہے کہ پہلا طریقہ کار جو تھا دین کو پھیلانے کا وہ مسجد تھی۔ جب جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کو فروغ اور آسانی ملی، ممبر پر بات آئی، ممبر حسینیہ بننے
होने लग गए। फिर मज़ीद आसानी की तरफ बात आई तो अतबात आलियात में नमाज़ें जमातें होने लगी। पहले तो ज़ियारत के लिए ही नहीं आने दिया जाता था। दुश्मनान ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़ारों को, अगर किसी के निगाह में ये बात ना हो तो आज भी आप मदीना में अहले बैत अलैहिस्सलाम के रौज़ा मुत्तहरात को देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या कैफियत रखी गई है। और अब दौरे जदीद में एक नई कैफियत जो रखी गई है, ज़ैनबिया सलामुल्लाह अलैहा दिमिश्क शाम में जो हालत की गई है वो भी आपके सामने है कि नाम बदले जा रहे हैं, ना जाने की कैफियत पैदा की जा रही है। मोमिन अब तकरीबन ना होने के बराबर ही जा रहे हैं लेकिन ना होने के बराबर जा रहे हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़ारों की बात जब पहुंची, यहाँ से तरक्की की बात हुई कि कुतुब प्रिंट हुई, ये तरीके देखें, मस्जिद, मिंबर, रौज़ा मुत्तहरात, किताबें, मजल्ले, और फिर दौरे जदीद का एक और तरीक़ाकार, वो कारवान माशाल्लाह इतने आने लगे। ये भी तबलीग का ज़रिया और मीडिया भी उनमें से एक है। बिल्कुल किबला, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और जी गालिबन हमारे साथ जो है वो कॉल जो है इस वक्त है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी इस वक्त आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से नशर होने वाला प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में है और यहाँ मोमिनीन कॉल करते हैं और एक स्पॉन्सर की हैसियत से यहाँ पर ऐलान करते हैं। तो हम उम्मीदवार है कि इंशाल्लाह आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के स्पॉन्सर बनेंगे इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाल्लाह। अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला में है। मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए अगर कोई दुआ करना चाहे। बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या खियारतुल्लाह व इब्न खियारती, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाल आलमीन, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला वलती हलत बिफिनाका व नाखत बिरालिका, लैकुम मिन्नी सलामुल्लाह या बदन व बाकित व लैल व नहार वला जाला आहद मिन ज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामत रहिए वली कल फराज। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपके इस नजराने को कबूल व मकबूल फरमाए। और हमारे पास एक तरीक़ाकार ये भी है कि 14 मासूमीन में से किसी एक मासूम के साथ मोमिनीन जो है अपने नज़र को ख़ास करते हैं। तो आप 14 मासूमीन में से किन का नाम लेंगे? यानी बाकी खासवादे तहारत को भी ले सकते हैं आप अपनी निगाह में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब्बास, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह बिस्मिल्लाह करूं, सदके जाऊं मौला हुसैन पाक। मौला हुसैन पाक ही मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी एहसास है माशाल्लाह माशाल्लाह। हुसैन पाक की पाक वालदा बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सैयद राज़ी रहें, मौला आपको सलामत रखें और हमेशा मुझे यही दार नसीब रहे हैं। हर सांस पे ज़ियारत करबला वाला नसीब हो। इलाही आमीन। मौला आपको सुख सेहत सलामती अता फरमाए, जल्द करबला मौलाना नसीब हो इंशाल्लाह। टेलीफोन ऑपरेटर इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे रब्ता किया जाएगा। और इंशाल्लाह सलामत रहे आप। रुबाब फातिमा साहिबा थी हमारे साथ डेरा इस्माइल खान से। और दोस्तान को भी इंशाल्लाह अपने अजीज़ अकरबा को और को भी आप इंशाल्लाह माइल करेंगी, वो कॉल करें और प्रोग्राम में कॉल करें। डेरा इस्माइल खान माशाल्लाह एक बहुत प्यारा इलाका है और मुहिबान अहले जी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से आपने अपनी नज़र को वक्फ़ किया है। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, जल्द करबलाए मौलाना नसीब फरमाए इंशाल्लाह। और दोस्तान को भी अपने अजीज़ अकरबा को फरमाएंगी, चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम पर कम अज़ कम 14 अफराद को कहिए कि वो भी कॉल करें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं और शरीक हों, ताकि उनका नाम भी मौला की बारगाह में लिखा जा सके और उनको ज़िंदगी, माल, दौलत, सेहत, इल्म, अक्ल, शऊर और खानवादे की हिफाजत के लिए मुआविन साबित हो। मौला आपको सलामत रखें। आपकी कॉल के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सलामत रहें।
ये रुबाब जी माशाल्लाह, रुबाब फातिमा साहिबा डेरा इस्माइल खान से। और क़िबला मोमिनीन का जज्बा जो है वो आप पहले से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि मोमिनीन कॉल करते हैं और अपनी खुशी से नियाज करते हैं और अपना हिस्सा डालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मोमिनीन की एक ख़ास बात है कि मौला के नाम पर खर्च करके हमें सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। हकीकत है घर में मैं नहीं कहता कि कमी आती है, लेकिन कभी कभार कैफियत ऐसी भी होती है कि कर्ज लेकर भी नजर न्याज मजलिस कराते हैं बेशक। सालाना कोई जलसा मुअय्यन कर लेते हैं, अपने बुजुर्गों की बरसी रख लेते हैं, कोई खुशी की मीलाद रख लेते हैं, जनाना मर्दाना कोई भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, अपने अज़ीज़ अक़रबा के दरमियान भी हो सकती है। सालाना मसलन 22 रजब का प्रोग्राम है, हर कोई अपने हिसाब से कूनों की नज़र अपने वुसत के एतबार से रख लेता है। 15 शाबान में कोई रख लेता है, और कोई मजालिस शहादत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में अपनी सालाना एक मजलिस रख लेता है। वुसत के हिसाब से, हालात के हिसाब से कुछ ना कुछ मोमिनीन करते रहते हैं और खुश होते हैं। ऐसी हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हैं। और इसमें से ये है कि इंसान जो है जो नियाज कर रहा है, और जो कंसेप्ट है हमारे पास नज़र का कि जैसे 22 का नियाज करते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के उन्वान से, या दीगर जो भी मुनासिबात हैं, तो उसमें से इस चीज़ की तरफ भी मोमिनीन को तवज्जो होनी चाहिए कि आप जो है वो हत्ता आज के इस दौर में आपके पास सहूलत मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी जैसे मसलन, उससे जो है आप करबला में भी नियाज का एहतमाम करा सकते हैं अपनी तरफ से और अपने रिश्तेदारों की तरफ से और अपने मरहुमीन की तरफ से वगैरह। इंसान नियाज का आप एहतमाम कर सकते हैं, और आपका जो भी खर्च है, यकीनन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम किसी का कर्ज अपने पास नहीं रखते, बल्कि यकीनन इसके मुकाबले में जो रिवायात है क़िबला, जो आप बेहतर जानते हैं कि एक के बदले में 70 की रिवायत है, एक के बदले में 10 की रिवायत है, वो आपको जो है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका बदला मिलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चंद गुना बढ़ाकर, यानी अगर सब रिवायत को 120 वगैरह वगैरह को मिलाकर अगर हम कहें तो यानी चंद बराबर बढ़ाकर मौला उसको इनायत फरमा देते हैं। और बहरहाल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का अता किया बरकत के एतबार से भी ज़्यादा होता है और कमियत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें जो बरकत होती है यकीनन वो हमारे लिए फ़रहत आवर होती है। उसमें कोई मलल नहीं होता, कोई थकावट नहीं होती, कोई अज़ियत नहीं होती उसके अंदर। रहमत ही रहमत है। बहरहाल हमारे मौजू का जो सिलसिला चल रहा है वो भी यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में खैर और खूबी, रिज़्क़ में बरकत कैसे लेकर आ सकते हैं। तो इत्तेफाक की बात है कि हमारे प्रोग्राम का मकसद भी 14,000 स्पॉन्सर ही है, जिसमें आप कॉल करने के लिए QR कोड आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इसको अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप कॉल मिल जाएगी, आप प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के मुस्तकिल स्पॉन्सर हो सकते हैं। 009647729911424 ये अपने मोबाइल में आप सेव कर लें तो भी आपके व्हाट्सएप पर ये नंबर शो होगा, तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। आज हमारा 8वां प्रोग्राम है, 6 प्रोग्राम बाकी हैं। 8 से 10 इराकी टाइम के मुताबिक रात में, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 12 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 और बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक 11 से 1 बजे के दौरान रात के वक्त में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी ममालिक सबका जिक्र किया नहीं जा सकता, 180 से ज़्यादा ममालिक है, वो हमारे लिए पूरा प्रोग्राम तमाम हो जाएगा। मोबाइल में टाइम देख के बताएं तो आप अपने अमूमन गैर ममालिक जो आउटसाइडर हैं, आउटसाइडर क्या कहूँ, आप सब हमारे दिल का हिस्सा है जी इंशाल्लाह। शबाना ये प्रोग्राम अली धनु लाड़काना सिंध से कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद से मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं जनाब, खैराफियत से हैं? बिल्कुल खैर के रहते हैं, आप बताएं, आप ठीक हो? करम है मौला का एहसान है। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ पहुंची, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिल बेचैन है ज़ियारत के लिए।
अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला आपकी, मैं नहीं कहूँगा कि ये बेचैनी आने के सबब से ख़त्म हो, बल्कि ये हमेशा आते भी रहें और ये बेचैनी मौला के पास आने की हमेशा लगी रहे कि रात दिन में आपको मौला से कुर्ब जवार की हमेशा ये ख्वाहिश रहे। ये ईमान की अलामत है। मौला आपको सलामत रखे। हमारे प्रोग्राम का मौजूद 14,000 स्पॉन्सर है और इसका हदफ आप समझ ही गए होंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के फैमिली में आपको शामिल करना चाहते हैं। तो आप चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बने? जी जी बिल्कुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह। आप अपनी इस नज़र को अहले बैत अलैहिस्सलाम के खानवादे में से, मसलन चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम में से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, मसलन किस खानवादे इस्मत व तहारत के गुल के साथ अपनी नज़र को तखस्सुस देना चाहेंगे, मखसूस करना चाहेंगे? जी 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 किसी एक का नाम आप ले लीजिए, बिस्मिल्लाह। जी थोड़ा आवाज आपकी थोड़ी समझ नहीं आ रही। जी आवाज़ गालिबन क्लियर नहीं। हाँ सैयदना जी आप इस उन्वान से जो है अपना जो आपका ये नज़र नियाज है, किस मासूम के साथ, किस इमाम के साथ आप जो है वो ख़ास करना चाहते हैं, इस किसी एक इमाम का नाम ले लीजिए, बिस्मिल्लाह। जी मौला इमाम हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। मौला आपकी रिस्क में इजाफा फरमाए। और आपसे एक गुजारिश और भी है कि इंशाल्लाह 14 मज़ीद अपने दोस्त अजीज़ और अकारिब से इसका तस्करा कीजिए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के स्पॉन्सर्स में शामिल हो सके। सलामत रहिए आप, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहिए। और इंशाल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के जहाँ पे आपने कॉल की है, ये जो टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं आपसे राब्ते में रहेंगे और इंशाल्लाह आपकी नज़र को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से वसल करने के लिए आपसे राब्ते में रहेंगे। मौला की बारगाह में अगर चाहें तो मौला को सलाम पेश कर सकते हैं। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। जी सलाम कीजिए। मौला की खिदमत में अगर कोई दुआ करना चाहें। मैं अपनी तरफ से और अपने वालिदैन की तरफ से मौला माशाअल्लाह। को सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दिल, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन। मैं मौला से दुआ करती हूँ कि फिर मौला मुझे फिर से अपनी ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। इलाही आमीन। और मेरे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और मुझे एक बार फिर अपने वालिदैन के साथ करबला की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। और मैं यौम ज़माने के ज़हूर के लिए दुआ करती हूँ और अपने भाई के लिए दुआ करती हूँ कि मौला फिदर अली असगर के सदके मुझे नेक भाई अता फरमाए और अपनी अम्मी और अपनी दादी शमीर के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जन्नत में दुआ अता और हम मौला हम से दीन के इलाही आमीन। इलाही आमीन। इलाही आमीन। जी बेटा आप 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर बनना चाहेंगे? जी माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुहम्मद। वअज्जिल फरजहुम। जी माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको कामयाब व कामरान फरमाए। खुसूसी आपके वालिदैन के लिए दुआ गो है। और 14 मासूमीन में से 12 इमाम में से आप किस मासूम का नाम लेना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रिज़ा अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मौला आपको सलामत रखें बेटा, और मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। इंशाल्लाह टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे कांटेक्ट में हैं, वो आपसे रब्ता करेंगे। और 14 अफराद को भी आपने बताना है कि इस प्रोग्राम में वो शरीक हों, ताकि वो कॉल्स कर सकें, इस प्रोग्राम को देखें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस चैनल के साथ वो रब्त में आ जाएं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस प्रोग्राम में वो शरीक हो सकें। आप 14 अफराद को ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखें और अपने वालिदैन का फ़ख्र बने और माँ बाप का सर हमेशा इज़्ज़त से बुलंद करने का सबब बने। मौला सेहत दें आपको, सलामत रहें। माशाअल्लाह। किबला रिस्क के उन्वान से गुफ्तगू थी, तो जो नेक और सालेह औलाद है वो भी रिस्क है। बेशक है सर, चूँकि जैसे रिवायत में है कि इंसान की अगर मौत वाक़या हो जाती है, ज़ाहिर है हर शख्स ने यहाँ से रुखसत होना है, तो कुछ चीज़ें जो है वो इंसान की रह जाती है कि जो बाद में भी उन तक सवाब पहुँचता रहता है। तो इसमें से एक है ज़ुर्रियत सालिहा, यानी जो नेक औलाद है वो भी इंसान की जो है वो रिस्क है। या अगर इंसान ने कोई नेक काम किया हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपने रिस्क में से जो है वो किसी ऐसे इदारे में आपने नज़र की है कि जो इदारा चलता रहे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी जिस नीयत से इसको बनाया गया है, हम नहीं रहेंगे लेकिन ये इदारा रहेगा। और बड़ी कौमें होती भी ऐसी है कि वो अपने इदारों को महफूज रखते हैं। इंसान तो ज़ाहिर है आज एक है, कल जो है वो दूसरा होगा, लेकिन इदारा जो है उसमें अगर आप खर्च करते हैं और वो सिलसिला जारी रहेगा तो ये सवाब जो है वो आप तक पहुंचता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन आपने बजा फरमाया कि औलाद सालेह, मस्जिद बनाना, पुल का तामीर करना या कोई ऐसा मफाद आमा का कोई ऐसा काम करना जिससे कौम की इस्लाह, ज़रूरत पूरी होती रहे, हाजत पूरी होती रहे, तरक्की हो। इल्मी दरसगाह, मदरसा, बहरहाल देखें हमारे मेंबर भी मदरसा हैं, हमारे चैनल्स भी मदरसे की सूरत में ही है। यहाँ से इल्म अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आम किया जाता है। ज़ाहिरी बात है हमारे यहाँ या तो ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों की बातें हैं। मखसूसियाँ भी यहाँ पे और आज़ादारियाँ भी यहाँ पर से कॉस्ट की जाती हैं। तो मकसद यही है कि इन इदारों को हमें मजबूत करना चाहिए ताकि हम अपनी कौम को फ़रोग़ दे सकें। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बाउंड्रीज़ का कायल नहीं है, और हम जहाँ कहीं भी हों हमारा दीन मज़हब हकीकत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तहत है। बेशक कोई ज़बान हो, कोई रंग हो, कोई कौम हो, कोई मिल्लत हो, कोई ज़माना हो, हम अपने उलमा को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल करने वालों की हैसियत से जानते हैं, चाहे किसी भी मुल्क का हो, किसी भी ज़बान का हो। हमारे यहाँ ये नहीं है कि वो उस ज़बान का है, वो उस ज़बान का है। हमारे यहाँ देखा ये जाता है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है, इदारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, करबला का है, आपकी दिल की धड़कनों के करीब है। उम्मीदवार हैं कि आप इससे भी मरबूत रहेंगे। जी बेशक। और इस उन्वान से भी मैं अर्ज़ करूँ किबला कि हमारे बहुत सारे ज़िंदगी में मुश्किलात होते हैं, माली मुश्किलात इंसान की होती है। ऐसा तो कोई शख्स भी नहीं होगा कि जिसकी कोई ना कोई मुश्किल ना हो। जिसके पास जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा बिल्कुल ऐसी है। जिनके पास जितनी ज़्यादा माली वुसअत उसकी ज़्यादा है, उसी एतबार से मुश्किलात भी है। तो लेकिन ऐसी कोई मुश्किल भी नहीं है कि जिसका हल ख़ानदान इस्मत व तहारत के पास न हो, यकीनन। तो हमारे जितनी भी मुश्किलात है, बाज़ लोग हो सकता है कि साहिब औलाद ना हो, औलाद से नेमत से महरूम हो। बाज़ ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास घर न हो, अभी तक जो है वो किसी रेंट के घर में बैठे हों, या अपने मुल्क में इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। या हो सकता है कि कुछ ऐसे मुश्किलात भी हो कि इंसान जो है वो अपने घर वालों से दूर हो। ये भी एक मुश्किल है कि इंसान अपने कौम कबीले से, तो इसके लिए सब के लिए आप यकीनन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल कर सकते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जो है आपके मुश्किलात हल होंगे। जी महनाज साहिबा है किबला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, बहुत मेहरबानी। सलामत रहें। कैसी हैं बहन, खैराफियत से हैं? जी आपकी आवाज़ कम आ रही है। अगर आपने मोबाइल की आवाज़ को बुलंद कीजिए। इंशाल्लाह खैराफियत से हैं इंशाल्लाह। महनाज बेगम साहिबा गुजरात इंडिया से, मौला आप पर बरकतें नाजिल फरमाएं। आपने कॉल मिलाई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के 14,000 स्पॉन्सर में।
इस प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे है और आज इसका 8वां प्रोग्राम है। 6 प्रोग्राम्स बाद में भी नशर किए जाएंगे। शब का प्रोग्राम है ये, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 बजे के दौरान ये लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इस प्रोग्राम में आपने कॉल की है, तो क्या आप चाहेंगी कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की स्पॉन्सर करार पाएं? इंशाअल्लाह सून। बस मैंने सल्ली अला ये कहा किया मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल कि मैं आपसे इल्तिजा कर सकूं मौला मौला कि मौला में आप अर्ज करें, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है मौला ने अता किया हुआ है, तो जल्द ही उस ऐसी हालत करे कि मैं जल्द से जल्द स्पॉन्सर कर सकूं, उस लायक बनूं कि मैं स्पॉन्सर करूं। इलाही आमीन। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इसमें स्पॉन्सर आपका करना हस्बे तौफीक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एक हद है, कोई मुअय्यन है वगैरह, कुछ भी ऐसा सिलसिला नहीं है। जितना आप हस्बे तौफीक मंथली कर सकें बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी नज़र को मौला के 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम में से किस मासूम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करना चाहेंगी? जब भी मुझे इस्तिताअत बख्शी मौला ने, तो मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और अकबर अलैहिस्सलाम के जिनका नाम आपने लिया है वो आपको किफाफ करेंगे, ज़रूरतें हमारी पूरी करने वाले हैं। असल बात नीयत की है, आपके एहसास की है, और आपकी ये काविश यही काफ़ी है हमारे लिए कि आप एहसास कर रही हैं। हमें सिर्फ यही चाहिए, बाकी मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, आपकी परेशानियां दूर फरमाएं, और फ़कत हमारी यही गुजारिश है, आप इसकी मुश्तरिक एक डोनेट करने की हैसियत से भी हो सकती हैं, और आपकी डोनेशन इस सूरत में भी हो सकती है कि आप इसकी कॉलर हों और 14 मोमिनीन को भी इसमें कॉल करने का कहें और उन्हें भी प्रोग्राम्स की मुअर्रफी करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की मुअर्रफी करें। आपका ये भी हमारे लिए स्पॉन्सर ही शुमार होगा। मौला आपको इसी तवस्सुल के सदके मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की खाके पाक का सदका करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाएं। और जिस तरीके से आपने मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा कि मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम का खर्च करेंगे, तो दुआ है कि बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के नाम का दस्तरखान बिछाएं यहाँ पर आप आकर मौला की बारगाह में। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ इंशाअल्लाह मौला सलामत रखें। अगर मौला की बारगाह में सलाम पेश करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अल हुसैन व अली इब्न हुसैन व औलादिल हुसैन वला असहाबिल हुसैन, अस्सलाम अलैका या मौला या सय्यदी या बाबुल हवाइज, अस्सलाम अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलाम अलैका या सक़ाए सकीना, सलाम अलैह, अस्सलाम अलैका या रिदाए ज़ैनब या काशिफ करबियन व जिल हुसैन, इक्शिफ करबी बिहक़ के अखी कलुस, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कलुजत इब्न हसन सलवातक अलैहि अला बाई या हज़ी साते फकुल सातिन वलियन व हाफिज़न व काइदन व नासिरा दलील नैना हत्ता तुस्किन अर्ज़क़ता वन व तुमत्तु फ़ियात बिला। या मौला अली असगर अलैहिस्सलाम का ज़हूर पर नूर मुबारक हो मेरे मौला, मेरी मुश्किल को शाकर हो, मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखें, हुज्जत खुदा के मुंतज़रीन में करार पाएँ, और मौला आपकी इस खुलूस में रोज़ अफजून इजाफ़ा फरमाएँ, और आपकी इस मोहब्बत को, इन अशकों को दुआ है ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। दुआ है मौला की बारगाह में कि मौला आपको जल्द ज़री की जाली पकड़ के हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ करना नसीब फरमाए, और यहाँ पर आकर मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए इंशाअल्लाह। 14 मोमिनीन को भी आप इंशाअल्लाह मुअर्रफी फरमाएंगी, और नेक्स्ट भी इंशाअल्लाह मौला की बारगाह में तवस्सुल के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से मरबूत रहेंगी। सदा सलामत रहें, मौला आपको खुश रखें। जी, हमारी बहन ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को इंतखाब फरमाया। क़िबला एक चीज़ जो है, जो मैं इस पर भी थोड़ी सी वो करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस या बीमा जैसे चीज़ें जो है, मसलन इंसान के पास गाड़ी है, उसका जो है बीमा करा देता है, और उसकी वजह यह है कि जब अगर खुदा न खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जो है जी कुछ ना कुछ उसका मिल जाता है। तो यानी बीमे और या इंश्योरेंस का मतलब यही है कि एक चीज़ को महफूज करना। जैसे इंसान हमारे मुल्कों में भी लोग जो है वो इंश्योरेंस करते हैं, फिर उसके बाद जो है 20 साल 25 साल के बाद उसको मिलता है। तो क्यों ना मोमिनीन जो है ये
हुकूमतों के साथ इंश्योरेंस करना, उसके साथ अगर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ अपने आप को बीमा करें, तो ये इस हवाले से क्या क़िबला आप फरमाना चाहेंगे? सैयदना आपने बात मुकम्मल फरमा दी है। वाक़ई एक बहुत अजीम कैफियत है। देखिए, हम दुनियावी इदारों पर भरोसा करके उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं, जमा करते रहते हैं, मंथली, शिशमाही, सालाना हम पेमेंट करते रहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी होगी तो उनके लिए कर रखा है, बच्चों की ब्रॉडकास्ट यानी गैर मुल्कों में तालीम के लिए जी हम बच्चों का बीमा करके रखते हैं, या अपनी ज़िंदगी का बीमा करके रखते हैं कि हम चले जाएं तो हमारे बाद हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ मिल जाए। अपने घर का, अपने पेट्रोल पंप, मसलन गाड़ी या मुख्तलिफ चीज़ों का हम बीमा करके रखते हैं कि हम इंश्योरेंस करके रखते हैं कि कुछ ना कुछ मिलेगा। ये सब दुनियावी इदारे हैं जिनके अंदर हम इंश्योरेंस करते हैं, बीमा पॉलिसी लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बीमा पॉलिसी उनकी बारगाह में करें कि जो कभी भी अपने वाद से मुकरते नहीं, उनकी ज़बान एक है, ज़माना बदला है लेकिन ज़बान उनकी एक रही, बात एक रही, किरदार एक रहा, फेल एक रहा, तो यकीनन ये बीमा ज़्यादा कारगर रहेगा और वो महफूज इससे ज़्यादा है। अगर हम देखें कि हमने मौला की नाम से अपने कारोबार में से एक सहाम, एक हिस्सा करार दिया, मसलन इशारिया 0.01% भी करार दे दिया, मसलन 1% करार दे दिया, 2%, 5% मंथली सैलरी में से करार दे दिया, मसलन वो कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। और उसमें से एक आपकी नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप भी हो जाए तो एक सवाब में यकीनन एक हिस्सा आपका मिल जाएगा। बहरहाल उसमें से मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं, मोमिनीन के हुकूक हैं, तो एक बहुत ही बड़ा अजर है। और हो सकता है कि जहन में हो हमारे आपके इस नुक्ते के बयान करने से मोमिनीन को मज़ीद तक़वियत मिले इस काम में, कार खैर में आगे बढ़ने में। वो अपने इलाकों में इदारे बना लें, हॉस्पिटल्स बना लें, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, बसेस, मसलन वैन्स वगैरह ख़रीद दें कि भाई ये बीमा हमारी तरफ से मौला के नाम का हो गया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को अगर आप शामिल रखना चाहें तो ये भी एक बहुत बड़े अजर की बात है, ताकि आपका हिस्सा एक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दीन की तरवीज में भी खर्च होता रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है क़िबला। और मैं एक चीज़ इस उन्वान से अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे मौला का फरमान है कि आप ये ना देखें कि ये कौन है, बल्कि ये देखें कि क्या क्या कह रहा है। तो अगर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के मिशन को देख लिया जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी जो नूर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को मखसूसन हमारे जैसे उर्दू ज़बान में एक तो आपका प्रोग्राम है कि माशाल्लाह पूरी दुनिया से जो है उसमें मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं, और कोई भी बैठा हो अपने घर में वो नौहे और ये सब चीज़ें, और ख़ुद अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ एक तरीके से ये एक इत्तिसाल है जो उसका रहता है। और दूसरी ये है कि ख़ुद इंसान जब करबला आ जाता है, यहाँ ज़ियारत करके चला जाता है, बाज़ मोमिनीन तो ये कहते हैं कि ख्वाब की तरह कोई एक आलम होता है कि जो गुजर जाता है और हमें फिर बाद में पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ गए थे। तो एक तरीके से जब इंसान इस याद को अपने दिल में जो बसाया हुआ है और जब वो वापस घर जाता है तो वो याद जो दोबारा उसके लिए एक किस्म की याद दहानी की ज़रूरत होती है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चूँकि करबला को लाइव दिखाता है तो इस हवाले से भी उनकी याद दहानी और वो नक्शा जो है वो उनके दिल में महफूज रहता है। बिल्कुल, वो जिस तरह की साइकोलॉजिकल एक कैफियत है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा तज़किरा करते हैं, वो आपके दिल में, आपकी रूह में, आपकी फ़िक्र में घर बना लेती है। बिल्कुल। किसी भी चीज़ को कि मसलन आप समंदर के किनारे रहते हैं, समंदर को ज़्यादा देखेंगे तो आपके दिल में समंदर से एक उल्फत पैदा हो जाती है। रेगिस्तान में रहते हैं आप, जहाँ पे भी रेगिस्तान देखेंगे आपको अच्छा लगता है। आप पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी, बहरहाल ये अलग बात है कि पहाड़ हर किसी को ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जो रहते हैं उनकी मोहब्बत कुछ और ही होती है। पहाड़ों से वो और जगहों पे रहना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उन्हें पत्थरों में रहना अच्छा लगता है। हर किसी की एक कैफियत है, जिस चीज़ को इंसान ज़्यादा देखता है मोहब्बत पैदा होती है। और तो अगर हम मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़्यादा करते हैं
تو اگر ہم نشریات سے بھی ایسی وابستہ ہو جائیں. اب دیکھیے ہم نصیحتیں تلاش کر رہے ہیں. ایک وہ بات جو میں کافی دنوں سے کہنا چاہ رہا تھا, جی بسم اللہ. ہم نصیحتیں تلاش کر فلانی فلم میں فلانے نے بات اچھی کی, جوانوں کا طریقہ کار آج کل یہی چل رہا ہے, فلانی کلپ کے اندر یہ بات نکلی, فلانے, چاہے وہ دینی ہے یا نہیں, دینی کی بات نہیں کر رہا میں, غیر دینی کی, لوگ فلانے باکسر نے یہ بات کہہ دی, فلانے رائٹر نے یہ بات کہہ دی, فلانے فلم سٹار نے یہ بات کہہ دی, لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسی. سبب کیا ہے؟ ہم دیکھ انہیں رہے ہیں اور پھر خوابوں کے اندر بھی انہی کے ہی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. واہ کیا بات. اگر ہم اسلامک میڈیا سے وابستہ ہوں گے تو ہمیں دیکھیں ان میں ہم اپنا مقام دیکھیں. کتابیں جس طریقے سے مختلف ہو سکتی ہیں, ان میں سے قرآن مجید اہل بیت علیہ السلام کے ذکر والی کتابیں جدا ہیں. اسی طریقے سے میڈیا میں ہمیں میڈیا کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے دیکھیں, جب دیکھیں گے ہی نہیں اہل بیت علیہ السلام کو, وہ میڈیا جو دنیاوی میڈیا ہے, فلمز ہیں, مختلف چیزیں ہیں, وہ بہت زیادہ جذاب بنا کے پیش کی جا جب ہم اس اداروں پر, ان اداروں پر جو مذہبی ادارے ہیں ان پہ خرچ کریں گے تو ہمیں یہاں سے وہی جذاب چیزیں میسر آئیں گی. مثلاً ہم کارٹون سیریز بنا سکتے ہیں محبت اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ, فلمز جس طریقے سے کچھ نہ کچھ موجود ہیں, مزید بھی بن سکتی ہیں. کئی موضوعات ہیں جن کے اوپر مزید تاریخی ڈاکومنٹریز بنائی جا سکتی ہیں. روضہ مطہرات میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, ان پہ ڈاکومنٹریز ہو سکتی ہیں. جب ہم بار بار دیکھیں گے تو ہمیں ان سے بھی ایک الفت ہی پیدا ہو جاتی ہے. لہذا دیکھنا بھی کہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھنا بھی لذت کی ایک قسم ہے. بالکل 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 بجا فرمایا, اور بہت ہی خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, اور یقیناً کاربرد ہے اس کا کہ انسان جو چیز دیکھتا ہے پھر خوابوں میں بھی وہی چیز اس کو نظر آتی ہے. تو یہ واقعاً یہی ہے کہ چونکہ جو شیطانیت جو ہے وہ اس کا پرچار اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ جس میں جو ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ظلمات ہے, جو تاریکیاں ہیں, وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. کال ایک ہمارے پاس آ چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی آپ ہماری آواز سماعت فرما سکتے ہیں. آپ کی طرف سے غالباً میوٹ ہے تو آپ کھول دیجئے. بسم اللہ. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی غالباً آپ کی طرف سے کال جو ہے وہ میوٹ ہے تو آپ اس کو اوپن کر لیجئے اور ہمارے ساتھ اس پروگرام 14,000 اسپانسر میں شامل ہو جائیے. بسم اللہ. جی غالباً ان کی طرف سے جو کال ہے وہ جی دوبارہ. جی آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی آواز آپ کی آ رہی ہے. آپ ذرا تھوڑا سا اپنے موبائل کو اپنے منہ کے قریب کیجئے. جی اس وقت آپ 14,000 اسپانسر پروگرام جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے نشر کیا جا رہا ہے اس میں آپ کال کر رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ آپ کا اسم گرامی. جی لاہور سے آل حسن صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی اس وقت آپ پروگرام 14,000 اسپانسر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی ان 14,000 میں سے کوئی ایک اسپانسر بنیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ جو ہے جو نظر آپ نے کی ہے اسپانسر بنے ہیں 14 معصومین علیہ السلام میں سے. کس معصوم کے ساتھ اپنے اس نظر کو آپ خاص کریں گے؟ کسی ایک معصوم کا نام لے لیجیے. امام رضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مولا آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے. اور اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. سلام عرض کیجئے اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں. بسم اللہ. اور اس وقت جو ہے زری جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ. جی امام رضا کے پاس. واہ واہ سبحان اللہ.
मासूमा फातिमा है इमाम रज़ा के पास तस्वीर से इमाम रज़ा के पास ज़िब्रील को देख ले मेरे फिसाले को ज़िब्रील जान के मेरे फिसाले को तत्हीर की रिदा है इमाम वाह 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 माशाल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह, खूबसूरत अल्लाहुम्मा और सल्ली अला मुहम्मद व आले बोला। मुहम्मद। माशाल्लाह आले हसन, बेटा आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता इलाही फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम का मकसद 14,000 स्पॉन्सर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से वाबस्ता करना है। इंशाल्लाह आपका नंबर नोट कर लिया गया है। हमारा एक प्रोग्राम आता है, ये करबला है, उसमें नोहा खां मनकबत खां हजरात शिरकत फरमाते हैं, तो माशाल्लाह। उसमें आप वीडियो कॉल के जरिए से शिरकत फरमा सकते हैं। इंशाल्लाह। उसमें इंशाल्लाह आपको दावत दी जाएगी, उसमें आप बाकायदा मुकम्मल अपने कलाम पेश कर सकते हैं और दोस्तान को भी आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से वाबस्ता करेंगे और कम अज़ कम 14 अफराद को कहिए कि वो इस प्रोग्राम में कॉल करें ताकि वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से जुड़ जाएं और इंशाल्लाह आपसे टेलीफोन ऑपरेटर कांटेक्ट में है, वो राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह उम्मीदवार है कि आप ज़रूर अपने दोस्तों को कॉल करें और इस प्रोग्राम का अगर अभी भी आप कर सकते हैं तो बेशक करा दीजिएगा। मैं और सैयद जो है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके हाजिर खिदमत है। मौला आपको सलामत रखे, सदा आबाद रहे और दोस्तान से भी राब्ते में कराएंगे। मौला आपको सलामत रखे, सदा आबाद रहे, मौला खैर आफियत से रखें आपको। माशाल्लाह मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम को निछावर करने के लिए करबला से बढ़ के मैं नहीं मुकाबला करता और मकामात का बहरहाल करबला में आके कुछ कैफियत मुख्तलिफ ही है और जगह से। इराक में आकर जिस तरीके से आप जानते सैयदना जो भी ज़ाहिर आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि करबला में ज़्यादा रहा जाए। जी बिल्कुल है। और मुख्तलिफ ग्रुप्स में मैंने मजालिस पढ़ी तो वो सालार यही कहते हैं कि करबला अगर आखिर में आओ तो ज़ाहिर सुकून में रहता है और जगहों पर, अगर करबला पहले ज़ियारत करा ली जाए तो बाकी मकामात पर ज़ाहिरीन को ले जाया जाए तो थोड़े से वो बेचैन हो जाते हैं कि भाई करबला से होकर निकल आए हम। तो लिहाजा इसलिए सालार अक्सर कोशिश करते हैं कि करबला मौला की ज़ियारत को आखिर में रखा जाए ताकि उनको एक कैफियत जी बिल्कुल ऐसी है किबला। और जी सैयद मुशर्रफ हुसैन साहब किबला आप जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? करम मौला का एहसान या अली मदद। या इलाही मदद जी, बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखें। आपका नाम भी माशाल्लाह मुशर्रफ और फिर हुसैन, शरफ पैदा किया हुआ हुसैन आपका नाम का मतलब बनता है माशाल्लाह। मौला आपको दुनिया और आखिरत में शरफ तवस्सुल अहले बैत अलैहिस्सलाम अता फरमाए। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में शरीक हैं। क्या आप चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के मुस्तकिल स्पॉन्सर हो जाएं? जी बिस्मिल्लाह जनाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखें। तो आप अपनी नज़र को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इस प्रोग्राम में किस मासूम अलैहिस्सलाम के नाम से मुशख़्ख़स करना चाहेंगे? मुझे बता दीजिए क्या इसके ऑप्शंस क्या हैं? चहारदा मासूमीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के खानवादे में से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इनमें से किसी एक नाम को आप मुशख़्ख़स कर लें जो आप नज़र करेंगे, वो इनके में से किसी एक के नाम से आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को पेश कर सकते हैं। मुझे कहेंगे थोड़ी सी डिटेल्स बता। जी सर, आप जो है वो किसी एक मासूम का नाम ले लीजिएगा। सर आप किसी एक मासूम का नाम ले लीजिएगा, इंशाल्लाह हमारे जो ऑपरेटर है वो आपके साथ फिर बाद में राब्ता करेंगे और आपको पूरी जो है वजाहत करेंगे। किसी एक चारदा मासूमीन में से किसी एक का नाम ले लीजिए। हाँ, मुशर्रफ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे सोज खां सलाम खां माशाल्लाह और प्रोग्राम में शिरकत करते रहते हैं। मौला अली का आजकल जो अयाम है
अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारा हैदरी या अली, सलामत रही। मौला आपको सलामत रखें। हुजूर इंशाल्लाह आपसे राब्ते में हैं और मौला की बारगाह में। ये प्रोग्राम हमारा असल में स्पॉन्सर का है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए डोनेशन का एक सिलसिला शुरू किया है। 14 शबाना प्रोग्राम है, आज उसका 8वां प्रोग्राम है। 6 प्रोग्राम और होंगे इंशाल्लाह। आपकी शिरकत का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने शिरकत फरमाई है और आपने बढ़ावा दिया प्रोग्राम को। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मौला आपको सलामत रखें और सदा आबाद रहें। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है, अगर मौला की बारगाह में सलाम पेश करें तो मोमिन भी आपके साथ शरीक हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। जी मेरा जरा गला खराब है, लेकिन मैं पेश करता हूँ कुछ मौला की बारगाह में। एक ज़ियारत पढ़ दीजिए, एक बोल ज़ियारत का कह दीजिए, सलाम पढ़ दीजिए जी, सिर्फ जी। ज़ियारत का। बिस्मिल्लाह। रहता है जो जमाने में हैदर से दूर दूर वाह, रहता जो जमाने में हैदर से दूर दूर अल्लाह होगा बरोबे ऐसे पैगंबर से दूर दूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम खुश संगरेज़ों से क्या फैज़ पाओगे, कतरों तुम्हारे हो समंदर से दूर दूर। वाह वाह वाह, सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह। वाह वाह। सदा सलामत रहे, मौला आपको खुश रखे। ऐसे भी सूरमा के नबी की सिपा में फिरते रहे अलम लिए खबर से दूर दूर। वाह वाह वाह, वाह, माशाअल्लाह। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जल फरज। जज़ाकल्लाह। किबला मुशर्रफ हुसैन साहब, मौला आपको सलामत रखें, शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाते रहते हैं और अब भी आपसे अर्ज़ यही रहेगी, टोरंटो के रहने वाले मोमिनीन को भी कहिएगा वो कॉल करें, 14 मोमिनीन से कहें वो कॉल करें, ताकि हमारे इस मीडिया ग्रुप में मज़ीद वसअत हो। और इंशाल्लाह माशाल्लाह टोरंटो के मोमिनीन वाकिफ़ हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से, और इंशाल्लाह आपके शुक्रगुजार हैं। दुआ गो जल्द कर बलाए मौला तशरीफ लाए, साथ में बैठकर जिक्र अंजाम दें। मौला आपको सलामत रखे। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया मौला, मौला आपको सलामत रखे, सदा आबाद तो सलामत रखिए और कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम। इलाही आमीन। आपको भी इसी तरह मौला आपको सलामत रखे, हुज्जत खुदा के नासिरीन में शुमार हो। मौला सलामत रखे। माशाल्लाह बड़ा बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी दुनिया से, जैसे हमारे ये मुशर्रफ हुसैन साहब कनाडा से कॉल कर रहे थे, और पूरी दुनिया से मोमिनीन जो है हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और इस हवाले से बहरहाल अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तवस्सुत से, और उसके साथ साथ नज़र नियाज भी करते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, एक अजीब सी कैफियत होती है, देखिए सैयद ना, हम अपने जहाँ पे हम रहते रहे हैं वहाँ पे रहते हुए इतने सारे ममालिक से कांटेक्ट शायद बहुत मुश्किल हुआ करता है। शायद रिश्तेदार दोस्त जहाँ जहाँ गए हुए उनसे तो हो जाता है इंसान का, लेकिन यहाँ पर करबला की बरकत है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत है कि वहाँ के मोमिनी यहाँ पर नजर आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, दोस्तियाँ हो जाती हैं कि जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, और यहाँ पे रहकर ख्याल आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जी इर्तिज़ा साहब है हमारे साथ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह। जी किस शहर से आप कॉल कर रहे हैं सर?
मैं कराची पाकिस्तान से माशाल्लाह कराची से कॉल कर रहे हैं। इस वक्त आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से नशर होने वाला प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर्स में है और इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और इन 14,000 में से एक स्पॉन्सर की हैसियत से यहाँ ऐलान करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक स्पॉन्सर बनेंगे। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका जो नियाज है, जो नज़र है, वो 14 मासूमीन में से किस मासूम के साथ या अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की किस मोतबर शख्सियत के साथ आप मुशख्खस फरमाएंगे? किसी का नाम आप ले लीजिए। मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह। मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम आपकी दाद रसी को पहुँचे और आपकी मुश्किलात हल फरमाएं। माशाल्लाह आमीन। जी, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है और मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। और अगर आप हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के सफ़े को देख रहे हैं तो वहाँ से आप मौला हुसैन की ज़रीह की ज़ियारत भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी। अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह हसन, अस्सलामु अलैका या अबल कासिम या अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अशहदु अन्ना क़द बलगना फ़िन नसीहती वअद्दैतल अमानता वजाहदता अदुवका वदुआफीका फसलवातुल्लाहि अला रूहिका तय्यबति वजज़ाका में आखिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सदा सलामत रहें। माशाल्लाह। मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत दें और ये ज़ियारतें मौला की ज़रिए पकड़ के यहाँ पर मौला की बारगाह में हदिया करें और मौला आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाएं। इलाही आमीन। और आपसे एक गुजारिश ये है कि अपने अजीज़ और अकारिब में से 14 लोगों के साथ आप इस प्रोग्राम के हवाले से इंशाल्लाह तस्करा फरमाए, उनको कॉल कीजिए ताकि इंशाल्लाह इस सुफ्रे और दस्तरखान पे इंशाल्लाह मज़ीद मोमिनीन की तादाद बढ़ जाए इंशाल्लाह। सलामत रहिए आप। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जनाब आपका शुक्रिया, आपने कॉल की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से कांटेक्ट किया। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर मोमिनीन फ़िदा हैं। जी बेशक, हर हिसाब से फ़िदा हैं, साल भर फ़िदा हैं, लहज़ा लहज़ा फ़िदा हैं। बेशक, और हरारत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क़ुलूब मोमिनीन में जो कभी भी ठंडी नहीं होगी। बेशक। और ये मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा, कभी भी ठंडी नहीं होगी। ये वो हरारत है, जो गर्मी है, यानी हयात है हमारी। बेशक। मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी हयात है। तो हमारा सिलसिला गुफ्तगू सैयदना वहीं पर था कि हम अर्ज़ कर रहे थे कि मीडिया ग्रुप्स में रंगारंग अब तो बात 8K तक पहुंच गई है। जो दोस्तान वीडियोस की क्वालिटीज़, फ़ोटोज़ की क्वालिटीज़ को समझते हैं, पहले सादा थी, फिर HD पर आई बात, फिर फुल HD पर आई, फिर केस पर बात शुरू हो गई, 4K पर बात पहुंच गई है कहीं कहीं पर, और अब तो 8K पर बात पहुंच गई है। जब 8K वाली वीडियो इंसान देखे तो उसे दूसरी वीडियो अच्छी ही नहीं लगती, यकीनन। और जो दूसरे चैनल्स हैं जो गैर इस्लामिक्स हैं वो इन पर बहुत काम कर रहे हैं, वो बहुत काम करें। विदाउट मेकअप ब्यूटी ऐसी दिखाते हैं वो कि आप कहेंगे कि पता नहीं जन्नत से चेहरे लाए गए हैं। तो लिहाजा फिर इस किस्म की कैफियत हो तो इंसान फौरन मायल होता है इन चीज़ों के देखने पर, मजबूर होता है। और मजहबी इदारों में अगर ये सहूलियात आएँ तो यकीनन इसका फ़ायदा दीनी अकायद, दीनी बातों, दीनी मसाइल को फैलाने में ज़्यादा मददगार हो सकता है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के तालीमात भी है कि उसी अंदाज से चलना है जिस अंदाज में दुनिया चल रही हो, यानी ऐसा नहीं किया जा सकता कि इंसान जो है उनकी जहन जो है पुरानी हो और चीज़ें जो है वो नई चीज़ें हो। जी ज़वार असलम साहब जी, अस्सलामु अलैकुम। जी
جی وعلیکم السلام قبلہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی؟ کرم مولا کا احسان یا علی مدد. جی پیر مولا علیہ السلام مدد. آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے 14,000 سپانسرز میں شریک محفل ہیں. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسرز قرار پائیں؟ جی جی ضرور ضرور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ اپنی نظر کو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے اس پروگرام میں کس معصوم علیہ السلام کے نام سے منسوب کرنا چاہیں گے؟ جی زوار اسلم کے نہیں، چہاردہ معصومین میں نے عرض کیا اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں سے آپ کے نام سے تو پہنچے گی، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے کس معصوم علیہ السلام سے توسل کریں گے آپ نظر کو پیش کرنے کے لیے؟ کسی ایک معصوم کا نام لے لیجئے گا، بے شک 12 ائمہ میں سے لے لیجئے یا امام رضا. امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ کی نظر کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے اور مولا آپ کو دنیا آخرت میں اپنی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. مولا کی بارگاہ میں ابھی بالکل میرے آنکھوں کے سامنے حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا امام رضا علیہ السلام کے بابا کے پاس ہیں، مولا امام رضا علیہ السلام کے بیٹے کے پاس موجود ہیں آپ اس وقت. تو مولا یہ دونوں معصومین علیہ السلام آپ پر کرم نازل فرمائیں اور امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں بھی بار بار جانا نصیب ہو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں آپ. بہرحال مولا کا ایک ذکر بھی میں کروں گا اس کے بعد. بہرحال آپ نے یہ نظر کا اعلان کیا ہے، انشاءاللہ ٹیلی فون آپریٹرز آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے، آپ کی نظر سے متعلق آپ سے گفت و شنید کر لیں گے. بسم اللہ آ جاؤ. جی بسم اللہ بسم اللہ. مولا قبول فرمائیں انشاءاللہ. آپ جب آپ کربلا آئیں تو یہاں پہ بھی بار بار آنا نصیب. جی آمین آمین. مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں. بہت شکریہ آپ نے کانٹیکٹ کیا، رابطے میں رہے. جی مہربانی جی، التماس سے دو. مولا سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں. مولا خوش رکھیں، آباد رہیں. سلامت رہے. تھوڑی جلدی میں تھے ماشاءاللہ. ہاں وہ پیچھے سے کاروان کی بھی آواز آ رہی تھی. پہلے نہیں جی سلامت. بہت شکریہ آپ نے کال کی. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ سے منتظر رہیں گے، آپ کانٹیکٹ میں رہیں گے. سدا آباد رہیں. بالکل ماشاءاللہ جذبہ ہے مومنین. اوریجنل کیفیت میں تھی، کیفیت کال کی. ظاہری بات ہے ہر شخص اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہے. اس بھاگ دوڑ میں اگر چینل لگا ہو اہل بیت علیہ السلام سے متعلق اور ہم سامنے بیٹھ کر مولا سے بھی مخاطب ہوں تو یقیناً دنیا کے شر سے بچنے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. مولا کی ذریعہ سامنے ہے، کیا بات کر رہے ہیں، کیا چلا رکھا ہے، کیا سوچ رہے ہیں. بسم اللہ سیدنا. جی یقیناً جہاں تک بات ہے، اب ہمارے یہ جو برادر تھے وہ وہاں پہ کاظمین میں تھے اور یقیناً سامرہ بھی گئے ہوں گے یا جانے والے ہوں گے. لیکن قبلہ ایک چیز جو قدیم الایام سے یہ سلسلہ ہے کہ مشہد بھی لوگ جاتے ہیں، سامرہ، کاظمین اور حتی حج تک لوگ جاتے ہیں، لیکن نام جو رکھتے ہیں نا کہ میں کربلا جا رہا ہوں. زیارت جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کربلا جا رہے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ اثر انداز ہے اور کیا بہتر ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جہاں آپ کربلا کو لائیو آپ کو کربلا روزانہ دیکھنے کو ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم مولانا. جی آپ کا اسم گرامی اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں تو کینیڈا سے کر رہی ہوں. میں چکتی. جی ماشاءاللہ. آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام کیا ہے؟ جی غالباً جی ماشاءاللہ موسوی صاحبہ ہے کینیڈا سے. اس وقت آپ 14,000 اسپانسر میں کال کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے پروگرام 14,000 اسپانسر میں کال کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے. اور یہاں جتنی بھی مومنین آتے ہیں وہ ان 14,000 اسپانسر میں سے ایک اسپانسر کی حیثیت سے اعلان کر دیتا ہے. تو آپ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی اسپانسر بنیں گی. میرے سمجھ میں نہیں آیا مولانا.
क्या करना पड़ेगा? आप आवाज़ को ज़रा दिक्कत से समाप्त कीजिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप ने अपने इस चैनल को वुसअत देने के लिए एक प्रोग्राम रखा है, जिसका आज 8वां प्रोग्राम है। 6 प्रोग्राम्स और भी होंगे। इस प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे है। इस प्रोग्राम में जो दोस्तान कॉल करते हैं वो ऐलान करते हैं कि हम इस मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बनना चाहते हैं। तो क्या आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की स्पॉन्सर बनना चाहेंगी? ये तो अब अचानक सोचना पड़ेगा घर में। कोई मसला नहीं है। आप करना पड़ता है स्कूल इसमें अमाउंट की हदबंदी नहीं है। आप मैं यहाँ पर एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, चूँकि मैं मोहतरमा को जानता हूँ शख्सन और ये ऑलरेडी स्पॉन्सर है। इन्होंने कई दफ़ा जो है माशाल्लाह इन्होंने बड़े नज़र जो है वो भेजे हैं और गालिबन जो है ये सैयदा बदर मौसवी साहिबा हैं कनाडा से, लेकिन चूँकि आलील है और इनको हमारी बात की जो है वो ज़्यादा समझ नहीं आ रही। तो माशाल्लाह ये बड़ी ही मुखय्यरा सैयदा है और मौसवी सैयदा है माशाल्लाह। और मैं आप मूसी सैयद हैं तो मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मुतालिक एक छोटा सा किस्सा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपके लिए भी यकीनन शिफा का सबब बनेगा। मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाया करते थे तो एक शख्स आता जमात में और बैठा रहता। दोस्तान ने कहा इंशाल्लाह कि मौला ये आकर बैठ जाता है, कहीं कुछ ना कर दे महफिल में, और ये जमात में भी साथ नमाज नहीं पढ़ता। तो वो शख्स बुलंद आवाज़ से पुकारने लगा, कहने लगा, ऐ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आप ये ना समझना कि मैं जमात में शरीक होने आता हूँ, फकत मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे आकर तो मेरा दिल ठंडा होता है, मैं इसलिए सिर्फ आकर मस्जिद में बैठ जाता हूँ। मौला ने तबस्सुम फरमाया और लोगों से कहा इसे कुछ भी ना कहिए। वो जब शख्स वफात पा गया तो उसने वसीयत की कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से फरमाइएगा मैं आपके दीन पर हूँ और आप ही मेरा गुस्ल कफन के कफील हैं। तो मेरे मौला ने उसका जनाजा भी पढ़ाया, गुस्ल कफन मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से अंजाम दिया। जी आप इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रीह मुबारक आपके सामने है, आप मौला को सलाम कीजिए, अगर कोई दुआ भी करना चाहें। बिस्मिल्लाह जी। अच्छा, शुक्रिया मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अबा अब्दुल्लाह सलाम अलल हुसैन अला हुसैन। मेरे असल में तकलीफ है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से जल्दी मौला को सलामत रखें, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। हड्डियों की तकालीफ के लिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का तवस्सुल बहुत ज़्यादा कारगर है। इंशाअल्लाह या बाबुल हवाइज या मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम अदरिकनी, इसकी तस्बीह पढ़ें, मौला आपको सेहत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हम भी दुआ गो हैं, मौला आपको सेहत दें इंशाअल्लाह। 14 अफराद को भी इंशाअल्लाह मौरफ़ी फरमाएंगी ताकि वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इस प्रोग्राम से अटैच होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बन सकें। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज होने से आपको महफूज रखे। मौला आपको हमेशा सलामत रहें माशाअल्लाह। ये किबला इस किस्म के जो मोमिनीन किराम बहुत सारे ऑलरेडी जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के बाद स्पॉन्सर है और बाद जो है वो सालहा प्रोग्राम्स वगैरह देखते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे इनके शायद वो हमारी आवाज़ को सही तरीके से उन तक नहीं पहुंच रही थी। बिल्कुल हो जाता है मीडिया का सिलसिला एक। जी बिल्कुल, और वरना जो जज्बा मोमिनीन का है वो यकीनन देखने वाला है कि किस कदर मोमिनीन इस अमर में जिद्दी है और जिस दिक्कत के साथ प्रोग्राम्स देखते हैं कि हत्ता अगर हमसे थोड़ी सी खुदा न खास्ता कोई गलती भी थोड़ी सी वारद हो जाती है तो वो इस्लाह करते हैं। इस कदर ये लोग जो है वो वैसे वाकई नहीं गलती इस्लाह करने वाली कैफियत एक माशरे को सेहतमंद बनाती है इस तरह से कि आपने इश्तबाह किया इस्लाह कर लें और तरीके से बताएं, प्यार मोहब्बत से बताएं। इस तरीके से माशरा फ़रोग़ पाता है, तरक्की पाता है। और जब तक ऐसे मोमिनीन रहे हमारा माशरा मजहबी रहा, दीनी रहा। जब से ये सिलसिला ख़त्म हो गया अब आहिस्ता 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 वो दीनी कैफियत ख़त्म होती जा रही है। हमारे यहाँ अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के लिए अपना रिश्तेदार होना ज़रूरी ना था।
सही बिरादरी का, खानदान का हमसाया होना ज़रूरी ना था। कोई भी किसी को भी अमर बिल मारूफ नेक नियति के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ, तरीके के साथ समझाने की नीयत से कर सकता था। जब से ये डिवाइडेशन बढ़ती जा रही है ना, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हर कोई अपर बल होता जा रहा है, हर कोई सेपरेट होता जा रहा है। जुदाइयाँ जो है ना, ये मोहब्बतों का ख़त्म होना, ये माशरे की तोड़ का सबब बन रहा है और इससे बचना चाहिए। अपने अंदर इस्लाह की कैफियत रखनी चाहिए, मोहब्बत की कैफियत रखना चाहिए। बहरहाल जो होना है वो तो होकर रहेगा, हम जो कर रहे हैं उसे बेहतर करने की कोशिश करें और चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से और जो भी मजहबी इदारे हैं से वाबस्ता रहिए, ताकि जब आप किसी इदारे से वाबस्ता होते हैं ना, ये ज़ाहिरी बात है एक मरकजियत में आ जाते हैं। मरकजियत में आने का मतलब होता है कोई ना कोई कहने सुनने वाला, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर वाला मौजूद है। एक जहाँ पे भी टोटे टोटे में होंगे ना, समझाने वाले भी नहीं समझा सकते और समझने वाले भी नहीं समझ सकते। बिल्कुल ऐसी है किबला। और जैसे मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर होती है, लेकिन इदारात जो है वो सालहात चलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो इदारे जिन ममालिक के, हत्ता जो बड़ी सतह पे हैं, जिन ममालिक के इदारे महफूज होते हैं, वहाँ पर कानून होता है, वहाँ वो कुदरतमंद होते हैं, वो कौमें मजबूत होती है। और चूँकि ज़ाहिर है कि अगर आपके पास जितनी भी काबिल स्टूडेंट्स हैं आपके पास, लेकिन जब तक यूनिवर्सिटी नहीं है तो क्या करेंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से जो हमारे कौमी इदारे हैं, जैसे एक उसमें से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का इदारा है, यहाँ से नशर व इशाअत होती है, जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ नशर व इशाअत का सिलसिला यहाँ से चलता है। तो अपने इदारों को मजबूत बनाने के लिए मोमिनीन को मैदान में आना पड़ेगा। अगर हम जो है, जो हमारे मुकाबले में जो लोग हैं दूसरे मज़ाहिब के या दूसरे फ़िरक़ के, आप अगर देखेंगे तो वो इस अमर में हमसे काफ़ी जो है वो मजबूत है। जी, कोई मेहमान है? मेहमान गालिबन इम्तियाज़ हुसैन साहब। जी, इम्तियाज़ हुसैन साहब सिंध से। अस्सलामु अलैकुम। साईं, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, माइक के करीब मुंह करके बात कीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम भी सुन लें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सिंध के किस शहर से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं सिंध से बात कर रहा हूँ। सिंध सूबा है, किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं कोटी जी से। कोटी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। आपने इस वक्त कॉल की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के 14,000 स्पॉन्सर, 14,000 मददगार, इस प्रोग्राम में आपने कॉल की है। ये प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को तमाम दुनिया में फैलाने के लिए बनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप भी मदद करने वालों में शामिल हो। तो क्या आप चाहेंगे कि आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के मददगार हो जाएं? जी जी बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। माशाअल्लाह। इस मीडिया ग्रुप से आप मददगार जो हो रहे हैं, तो किस मासूम अलैहिस्सलाम के नाम के तवस्सुल से इस मीडिया ग्रुप से आप मुल्हक होंगे? जी, किसी एक मासूम का नाम ले लीजिएगा। 14 मासूमीन में से किसके साथ आप अपने इस नजर और नियाज को खास करेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मौला कबूल फरमाए। और सिंध मवद्दतों की धरती है, मोहब्बतों की धरती है, विलाय अहले बैत अलैहिस्सलाम रखने वालों की धरती है। मौला आपको जल्द करबला मौला आने का शरफ अता फरमाए और मौला सेहत और आफियत से रखें। और इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इस प्रोग्राम में नेक्स्ट भी कॉल करते रहिएगा। 6 दिन और कॉल करने का भी मौका है आपके पास। और 14 मोमिनीन को भी कहेंगे कि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल करें ताकि वो इसके स्पॉन्सर बन जाएं और इसमें शिरकत करने वाले बन जाएं। और इंशाअल्लाह सदा सलामत रखिएगा। जितने भी मोमिनीन को शामिल कर सके शामिल कीजिएगा इंशाअल्लाह। अगर इस वक्त आप सलाम करना चाहते हैं मौला की खिदमत में, तो आपकी आवाज़ करबला में और जरी जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। बिस्मिल्लाह फरमाएं। माशाअल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल-मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम औलाद अल-हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम असहाब अल-हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शुहदाए करबला। मौला बीवी ज़ैनब सलाम अलैहा के सदके में, मौला गाजी अब्बास के सदके में मौला मुझ पे नजर करम करे और मेरी दुआएं कबूल करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद वाजिल फरजहम, जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो, बार बार आना नसीब हो, दुनिया आखिरत में मौला का कुर्ब नसीब हो, सदा सलामत रहें। और दोस्तान को भी माइल कीजिएगा, वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें, सदा आबाद रहें। मौला आपको हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रखें। सुभान अल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत सारे मोमिनीन जो है उन्होंने राब्ता किया इब्तिदाई प्रोग्राम से अभी तक, और हमारे साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जुड़ रहे हैं। तो दीगर मोमिनीन से भी हम यही दरख्वास्त करेंगे कि जो भी जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आपसे गुजारिश ये है कि हमारा ये रोज़मर्रा का प्रोग्राम जो तकरीबन 7 जलसे इसके मज़ीद होने हैं गालिबन, और इसमें जो है आप अपनी तरफ से जो है माली ताउन के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा ताउन है कि मोमिनीन जो है वो इस यहाँ का जो लिंक है उसको आप मोमिनीन के साथ शेयर करिए, या जो हमारा नंबर है स्क्रीन पे मौजूद इसको जो है वो आप शेयर कीजिएगा दूसरे मोमिनीन के साथ, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दस्तरखान पे वो भी तशरीफ़ लाए। कौन जी? जी सैयदा अंबर काज़मी साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाअल्लाह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से नशर होने वाला प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में कॉल कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम का तरीक़ाकार ये है कि मोमिनीन यहाँ कॉल करते हैं और इन 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर की हैसियत से ऐलान करते हैं। तो हम उम्मीदवार हैं कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की स्पॉन्सर बनेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। और आप ये भी बता दीजिए कि ये जो नियाज और नज़र आप कर रहे हैं 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से किस मासूम के साथ इसको आप ख़ास रखेंगी? एक मासूम का नाम ले लीजिए। जी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहम। मौला आपको अपने नासिरीन में शुमार फरमाए। इलाही आमीन, सलामत रहे। इलाही आमीन। माशाअल्लाह आपकी आवाज़ इस वक्त करबला मोहल्ला में है। अगर और ज़री जो है, ज़री सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसको अगर आप सफ़े को देखें तो वहाँ से आप ज़ियारत कर सकते हैं। सलाम कीजिए मौला की खिदमत में। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली बिन हुसैन व अला दिल हुसैन व या मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारे जो मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाइए मौला। हम सबको अपने दर पे बार बार बुलाइए, हम सबकी जायज़ हाजात पूरी कीजिए मौला। हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ हो जाए। मेरे शौहर मरहूम मोहम्मद तुराब नबी के अज़ाब कब्र से उनको बचाइए। इलाही आमीन। मौला सलामत रखे, और जो भी आपकी दुआएं हैं मौला कबूल व मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं और आपने ऐलान कर दिया। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। और 14 मोमिनीन को भी आप फरमाएंगी कि वो भी कॉल करें प्रोग्राम में, ताकि इंशाअल्लाह वो भी इस ग्रुप का हिस्सा बन सकें। मौला आपके शौहर की मग़फ़िरत फरमाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिफात से बहरामंद फरमाए, और उनकी कब्र में मौला अली अलैहिस्सलाम के नूर से रोशनी अता फरमाए। मौला उनके गुनाहाने कबाइर सग़ाइर से दरगुजर फरमाए। सदा सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। खुश वक्त है वो शौहर जिसकी ज़ौजा उसकी वफ़ात के बाद उसके लिए अमल खैर कर रही हैं, और वो खातून भी शरीफ है, नेक हैं, पाक-दामन हैं, बुजुर्गवार हैं, मोहतरम हैं, मुकर्रम है हमारी निगाह में, जो अपने शौहर की वफ़ात के बाद भी उनके लिए इसाले सवाब का काम कर रही हैं। अल्लाह ताला दोनों पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। इलाही आमीन। मौला दोनों को सेहत की जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला, वो वफ़ात पा गए ये हयात में, मौला इनको सेहत कामिला अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सैयदना सिलसिला हमारा
रब्त का है और हम तवस्सुल के लिए ही बैठे हुए जी, हैं बिल्कुल। और हम तवस्सुल कर रहे हैं इस वक्त इन उमूर से कि हम अपनी नस्लों को कैसे सुधार सकते जी, हैं बिल्कुल। और उसमें सुधारने के मौज़ूआत को हम रब्त दे रहे हैं नज़र न्याज हदिये से और जी 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 किबला। हाँ रजबुल मुरज्जब रजब असब यानी डब्बे जितना भर भर के औंधाद है ना, इस तरह के माने में असब का माने में एकदम उलट देने के माने में है। इसमें रहमतें औद करती हैं, लौट जी। लौट के आती हैं। बेशक। और इसमें एक दुआ भी है अल्लाहुम्मा बिहक़ हाज़ैन अल मौलूदैन, सुभान इस तरह की दुआएं, काफ़ी सारी दुआएं इसके अंदर। अच्छा इसमें एक दुआ आती है वो जो हर नमाज के बाद हर्रिम शैबती अलन्नार, दाढ़ी पकड़ के कहने। तो किसी ने सवाल किया कि ख़वातीन कैसे करेंगी ये तो सवाल एक किस्म का फ़नी सही है। बहरहाल उसमें मकसद दाढ़ी पकड़ना नहीं है, बच्चों की भी तो दाढ़ी नहीं होती। जी 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 ठीक है, बिल्कुल। और जिसकी कुदरती तौर पर दाढ़ी नहीं है वो भी तो इसमें शरीक है। जी जी ख़वातीन भी मकसद ये है कि अपनी ठोड़ी को पकड़ लें आप और दुआ मांगें। और उसमें यह है कि अल्लाह मेरे चेहरे को मुराद है, इज़्ज़त के मकाम को पकड़ना मुराद जी, है। जी, जी। ठोड़ी को इज़्ज़त के मकामों में से एक मकाम बिल्कुल। शुमार किया, क्योंकि चेहरा इंसान का इज़्ज़त का मकाम होता है। मकसद ये अल्लाह इस चेहरे पर मेरे आग को हराम करार दे। ज़ियारत रजबिया जो ज़ियारती मकामात पर हैं, अगर वो सुन रहे हैं या जो बाद में भी आएँ या जो आएंगे या आ चुके हैं, ज़ियारत रजबिया रोज़ाना की ज़ियारत है जो कि हरम मासूम अलैहिस्सलाम में पढ़ी जाती। किसी भी मासूम अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हो तो वहाँ पे ये ज़ियारत रजबिया तिलावत करनी चाहिए। और मुझे बड़ी पसंद है, ज़ियारत है, मुख्तसर सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मैं इंतज़ार करता हूँ कि रजब का महीना आए और मैं ये ज़ियारत पढ़ूँगा, ज़ियारत पढ़ूँगा। और हम आपकी सबकी तरफ से पढ़ते, फ़कत अपनी तरफ से नहीं पढ़ते। मौला आपको भी ये ज़ियारत मौला के कुर्ब व जवार में आकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वो हमारे ज़वील हुकूक जिन्होंने हमें दर्स दिया, जी, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जी, या जिन्होंने हमें नेक काम करना सिखाया, बुराइयों से बचाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, अच्छाइयाँ सिखाई, इस दुनिया में है तो अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमा। और अगर दुनिया से चले गए तो अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वालिदैन, हमारे अजीज़ अकरबा, आप हर किसी का कोई ना कोई इस दुनिया से जा चुका है। खा दोस्त हैं, खा उस्ताद हैं, खा बुज़ुर्ग हैं, कोई ना कोई है ऐसा जिसने नेकी सिखाई इस दुनिया में नहीं। अगर हैं तो उनके लिए कार्य खैर करें दुनिया के लिए, अगर वो चले गए हैं तो आखिरत के लिए उनके इसाले सवाब में हम आपके साथ शरीक हैं। और एक कार्य इसाले सवाब ये भी हो सकता है कि उनके नाम पर जी मंसूर अब्बास साहब हैं मैसूर कर्नाटका से। जी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं इसका नाम क्या है, चैनल नाम चैनल है ना जी। इस वक्त आप 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से नशर किया जाता है, और मैं अर्ज़ करूं कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और इन 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर की हैसियत से ऐलान करते हैं अपना। तो आप जो है वो इंशाल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के स्पॉन्सर बनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपके रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत अता फरमाए। और मैं एक सवाल मज़ीद ये सुनवान से करना चाहूँगा कि आप इस नज़र को जो आपने की है किस मासूम के साथ आपने ख़ास की है? किसी 14 मासूमीन में से किसी एक मासूम का नाम ले लीजिए। इमाम जाफर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मज़हब पर मौला आपको दुनिया आखिरत में उठना बैठना नसीब फरमाए, सदा सलामत रहें। इलाही आमीन। जी जी हमारे शोहर मंसूर अब्बास जो डायरेक्टर पेशेंट हैं, उनके वास्ते दुआ करिए। मेरे बच्चे फरहान अब्बास सैफ रोजी के वास्ते मौला उनके मारिफ में इजाफा फरमाए, आपके शौहर की जो मुश्किलात हैं मौला हल फरमाए। मौला आपको जी। इसमें मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि इनके जो शौहर है वो है मंसूर अब्बास, और वो डायलिसिस के मरीज़ है और कई महीने हो चुके हैं कि वो डायलिसिस में मुब्तला है और बहुत ही मुश्किल में है ये फैमिली। इनके लिए एक ख़ास दुआ कर दीजिएगा। आज की शब हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में
मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम के का वास्ता दे के बीबी सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देकर हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, मौला आपके शौहर को सेहत अता फरमाए, ज़ाती तौर पर उनकी ये जो बीमारी है उसे दूर फरमाए, साया आपके सरों पर कायम और दायम रखें। मौला का रोज़ा आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अगर आप टेलीविज़न में देख रहे हैं तो आप मौला को सलाम पेश कर सकती हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। जी बिस्मिल्लाह, सलाम कीजिए। सलाम हो मेरा आपका चैनल कौन सा है? आपका चैनल का नाम? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4, इमाम हुसैन टीवी 4 टेलीविज़न का नाम है। इंशाल्लाह हमारे जो हजरात यहाँ पे बैठे हैं इंशाल्लाहुल अज़ीज़ वो आपसे रब्ता करेंगे और पूरी जो है वो आपके सामने जो भी इनकी वजाहत है वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। सलामत रहिए आप लोग, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहिए। सलामत रहें, मौला खुश रखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट भी उम्मीदवार रहेंगे, आप कॉल करेंगे और दोस्तों से भी कहेंगे कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। आपके पास नंबर आ गया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल की जा सकती है। सदा सलामत रहे। प्रोग्राम का टाइम इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 बजे के दौरान होगा। 2 घंटे का ये प्रोग्राम है और इंशाल्लाह 8वां प्रोग्राम है आज, 6 प्रोग्राम और होंगे। उसके बाद अगर कॉल करना चाहें तो फुतरूस प्रोग्राम होगा इंडियन टाइम के मुताबिक, उसका प्रोग्राम का टाइम बन जाएगा रात के तकरीबन 11:30 बजे, 11:30 बजे से लेकर 12:15 के दौरान 45 मिनट दौरान का प्रोग्राम होगा। उसमें भी आप लोग कॉल कर सकेंगे। सदा सलामत रहें, मौला आपको खुश रखें। मुख्तलिफ मुश्किलात हैं, मुख्तलिफ तकालीफ हैं, मुख्तलिफ ज़हमात हैं, बेरोज़गारियाँ हैं, बीमारियाँ हैं जी। इनको हल करने के लिए यकीनन हम सदक़ात खैरात देते हैं, नज़र करते हैं और अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए हमने जो एक ऑप्शन रखी है वो बीमा करना है। हम इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, तो सबसे बेहतरीन पॉलिसी है अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात जी। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो दुनियावी इंश्योरेंस या बीमा है उसकी कोई ना कोई एक हद होती है। मसलन महीने के है या साल में आपने इतने पैसे जमा करने हैं, अगर उससे कम होंगे तो वो कबूल नहीं करते। लेकिन अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के पास ये सिलसिला नहीं है, बल्कि कम जितना आपकी जितनी वुसअत है उस वुसअत में आप जो है वो पैसे खुलूस होना चाहिए, बस खुलूस के साथ, तो उसके साथ आप जो है अपने नज़र नियाज़ को कर सकते हैं और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के पास आपका हक जो है वो महफूज है। आप इधर खुलूस से मुझे याद आया बीबी शतीता का किस्सा। जी सुभान अल्लाह। यकीनन आज के मौजू के हिसाब से ही रहेगा कि हमें उन्हें खुलूस चाहिए, उन्हें कसरत नहीं चाहिए, उन्हें खुलूस और हलाल चाहिए। जिस तरीके से निशापुर की एक खातून थी बीबी शतीता, शतीता नाम की खातून। अब देखिए ना ये खातून सहाबिया है ना कोई नबी है, ना मासूम है, ना खानवादा इसमें तो तहारत से है। काम क्या किया है, एक खुलूस का नजराना भेजा है। जी सुभान अल्लाह, खुलूस का नजराना भेजा है। अब कारवान जा रहा था खुम्स लेकर निशापुर से, तो ये खातून आखिर में पहुंची। कारवान के ऊंट लदे हुए थे सोने चांदियों से और रेशमों से और पता नहीं क्या क्या लोगों ने भेज रखा था, हीरे जवाहरात भेज रखे थे। ये खातून, बूढ़ी खातून चलती हुई आई और आकर इन्होंने शायद कोई 3.5 दिरहम और कोई 1-2 बालिश्त कपड़ा था वो पकड़ा दिया। ले जाने वाला जो जिसके सामने इतना सानी सोना चांदी आंखें चमका रहा हो। जी माशाल्लाह। जी कॉल आ रही है, फिर मैं इजामा दूंगा। जी इसी को आप ले लीजिएगा फिर इंशाल्लाह। चले कॉल जैसी कनेक्ट करते हैं फिर आप आ जाएंगे, मैं इंशाल्लाह बात जारी रखता हूँ। जी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपका इसमें गिरामी और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मेरा नाम मारिया रशीद है और मैं पुर्तगाल से कॉल कर रही हूँ। पुर्तगाल से कॉल कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम आप अगर दोबारा ले ले तो हम इसको जो है वो तहरीर कर सकेंगे। मारिया आसिफ साहिबा। जी मारिया रशीद साहिबा, इस वक्त पुर्तगाल में आप किस सिटी से हैं? आप मुझे कॉल कनेक्ट करें। जी जी
جی آپ اس وقت آپ جو کال کر رہے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کال کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں جو بھی مومنین آتے ہیں وہ ایک اسپانسر کے حیثیت سے یہاں اپنا اعلان کرتے ہیں، تو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی اسپانسر آپ بنیں گی؟ میں نے سلام پیش کرنا ہے، مجھے وہ کرنے دیں۔ جی جی بسم اللہ، چلے سلام پیش کریں آپ، بسم اللہ۔ جی آپ بسم اللہ، آپ سلام پیش کریں، ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام آپ کے سامنے ہیں، بسم اللہ فرمائیں۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا۔ ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لا سیما ابا الفضل العباس یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب آپ نے زیارت کر لی ہے، اب آپ بتائیے۔ اللہ پاک ہمیں کربلا میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بچوں کو، میری فیملی کو، سب کو انشاءاللہ انشاءاللہ مولا توفیق عطا فرمائے۔ والد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، سب کی دعائیں پریشانیاں جو بھی ہیں وہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے سب کو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ الہی آمین، کربلا آنے کی توفیق دے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا خصوصی کرم فرمائے آپ پر۔ جی اب آپ نے زیارت کر لی، اب بتائیے آپ کیا امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی اسپانسر ہونا چاہیں گی؟ جی جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا سلامت رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے اس پروگرام میں جو اسپانسر کرتے ہیں ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ 14 معصوموں میں سے کسی ایک نام سے اپنی نظر کو مخصوص کر دیجئے، کس معصوم کا نام لینا چاہیں گی آپ؟ 14 معصومین میں سے کسی ایک معصوم کا۔ جی 14 معصومین میں سے کسی ایک کا نام آپ لے لیجئے۔ امام جعفر صادق، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دعا ہے جو آپ نے دعائیں کی مولا ان سے بڑھ کر آپ کے حق میں آپ کی دعائیں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ بھی آپ کے کال کے منتظر رہیں گے۔ اب آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے مستقل سپانسر ہو گئی ہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور 14 مومنین کو بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی معرفی فرمائیں گی تاکہ وہ بھی اس کی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسر میں اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی فیملی سے جڑ جائیں، شریک ہو جائیں۔ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ اور ہم آپ کے دعا گو ہیں، مولا آپ کو سکھ صحت سلامتی عطا فرمائے، صدا آباد۔ جی ماشاءاللہ۔ اور آپ جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے، بی بی شتیتا کا، تو اس کو آپ جہاں سے آپ نے جی بسم اللہ کال تمام ہو گئی۔ ہاں بی بی شتیدہ یعنی اخلاص کی بات چل رہی تھی۔ بالکل، ایک محبت، ایک خلوص۔ وہ خاتون جب آئی نا 3.5 درہم، کہاں گٹھڑیاں بھری ہوئی سونے چاندی کی، اور کہاں 3.5 درہم، اور کہاں میٹروں کے حساب سے کپڑا، کہاں چند بالشت کپڑا۔ لے جانے والا غضبناک ہو گیا۔ پہلے تو روکا قافلہ چلتا ہوا، پھر پکڑایا تو وہ کہنے لگا اے بی بی اتنے گٹھڑیاں بھر کے لے جا رہا ہوں، تیرے اس پیسے کی کیا وقت ہے، کیا ضرورت ہے بھیجنے کی؟ صحیح۔ خاتون صاحب کردار اور با بصیرت تھی۔ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ جن کے اوپر جتنا واجب تھا انہوں نے وہ دے دیا ہے، جب میرے اوپر واجب یہ حد ہے تو میں زیادہ کہاں سے لے کر آؤں؟ بالکل۔ اگر تو نے لے کر جانا ہے تو میرے اوپر جو واجب ہے دے رہی ہوں، لے کر جا۔ جب یہ شخص کاروان لے کر پہنچا میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے جب اس نے بڑی بڑی پہلے گٹھڑیاں پیش کرنا چاہیں تو میرے مولا نے فرمایا سب کو ایک طرف رکھو، پہلے وہ
3.5 दिरहम सुभान और वो अल्लाह। चंद बालिश कपड़ा वाह, पहले वाह, मेरे वाह, पास लेकर वाह आओ। वाह वाह वाह, बेशक अब अंदाजा लगाइए खुलूस कहाँ से कहाँ पहुंचता है। मेरे मौला ने कुछ दिरहम अता किए इस ले जाने वाले को, सुभान और अल्लाह। कफन भी अता फरमाया। ये जो कफन है मेरी फूफी ने इसके सूत को बनाया था। धागा बनता है ना पहले कपड़ा बनाने से पहले, सूत इसका मेरी फूफी ने काता था। मेरी बहन ने इसको कपड़ा बनाया था, इसको मैंने रखा हुआ था अपने कफन के लिए। ये मेरा कफन ले जाओ और उस खातून को दो। फरमाना जाकर कहना कि मौला फरमाते हैं फला दिन तेरा इंतकाल होगा और मैं आकर तेरा जनाजा पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब अंदाजा लगाइए खुलूस का क्या इखलास की बात होती है, बिल्कुल ऐसी है। और यहीं से हम ये भी कहना चाहेंगे कि राह अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में अगर इंसान, उसके पास बेशक जो वुसअत है वो उतनी नहीं है जैसे दूसरे लोग होते हैं, कम है, लेकिन अगर वो उसी में से जो उसके खुलूस के मुताबिक है तो यकीनन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के पास मिक़दार की कोई औकात नहीं है, बल्कि जो असल चीज़ है वो है इखलास। तो कैफियत होनी चाहिए और खालिस होना चाहिए, तो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन कबूल करते हैं। नीयत होनी चाहिए, हैसियत नहीं देखते जी। सुभान अल्लाह, ऐसी है, इन अल्फाज को हम इस तरह भी पेश कर सकते हैं। वो नीयत देखते हैं, हैसियत नहीं देखते। अगर हैसियत दुनियावी की बात होती तो यकीनन कारून का मज़ार मौला के कदमों में होना चाहिए था। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। फिरौन का मज़ार यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन मौला ने नीयत जब देखी है ना तो अपने दर के ऊपर जिन्हें जगह दी है, जनाब जॉन को जगह दी है, सुभान अल्लाह, जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर को जगह अता फरमाई है। और वो गुमनाम चेहरे जो उस जमाने में कोई नहीं जानता था, उन्हें यहाँ पर आकर इज्जत अता फरमाई है। उन्होंने नीयत देखी है, हैसियत नहीं देखी। बिल्कुल ऐसी है। और यहीं से जो है हमारे मोमिनीन जो है उनके लिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, बल्कि हम सब के लिए कि हम लोग, हमारे पास जितना भी है राह अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में, उतनी ही हम कोशिश करें। तो इसमें वो नहीं है कि अगर कोई शख्स जो है वो उसके पास वो साहिब सिरवत है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, साहिब हैसियत है, तो ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारे पास जो अपने जितना अल्लाह ने दिया है यकीनन उतने पर ही अगर हम राह अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में खर्च करें या उसको जो है वो सर्फ करें, तो यकीनन अहलुल बैत के हाँ हमारा जो अजर है वो अजर अजीम है। बेशक ऐसा ही है। बहरहाल हम करबला में हैं, ज़ियारती मकाम पर मौजूद हैं, तो इस मुनासबत से भी काफ़ी सारी बातें हैं जो हमें कहते भी रहते हैं और कहते भी रहना चाहिए। ज़ियारत पर ज़ियारत की नीयत से आना चाहिए, तफरीह की नीयत से नहीं आना चाहिए जी। ये मोमिनीन को अपने पल्ले से बांध लेनी चाहिए बात, और इसको अपने दामन में गिरह लगा के रख लेनी चाहिए बात। ज़ियारत के लिए जब आएँ, यहाँ पे ज़ियारत के लिए आएँ, तफरीह की नीयत को छोड़ के आएँ। यहाँ पे आके डिलीशियस होटल्स, 5 स्टार होटल्स तलाश ना करें, यहाँ पे बूफे तलाश ना किया करें। यहाँ पर आकर कोशिश करें, अगर आप यहाँ पर ज़ियारत को अपने दिल में जगह देना चाहते हैं ना, तो पेट को कम से कम भरें यहाँ पे आके। जी बिल्कुल ऐसी है। हत्तुल मकदूर कोशिश करें कि यहाँ पे सादा से सादा पैकेज में सादा से सादा रिहाइश को इख्तियार करें। अगर आपके पास इतना माल दौलत है, एक तो शख्स है ना वो चल ही नहीं सकता, मजबूरी है उसकी व्हील चेयर पे आएगा जी, उसके लिए जो मजबूर शख्स है उसका हिसाब और है। बिल्कुल। एक है जो कर सकता है, करना नहीं चाहता, उसे करना चाहिए। यहाँ पे आके तन मन धन की कुर्बानी देनी चाहिए, यहाँ पे आके अपने आप का तजल्लुल जाहिर करना चाहिए, अपने आप को हकीर बना के पेश करना चाहिए। यहाँ पे भी आके तुर्रम खान बनेंगे और तुर्रा सर पे लगा के गर्दन अकड़ के चलेंगे तो वापसी जाके गड्ढे में गिरे पड़े होंगे। लिहाजा यहाँ पे आके सर को झुका के चलिए, झुकने के लिए आइए, आसमान पे चढ़ने के लिए ना आइए। यहाँ पे जो झुक के आता है वैसे ही आसमानों पे चढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यहाँ पे अताएं होती हैं, लिहाजा अताएं लेने के लिए आए हैं, तो दुनियावी लज्जतें यहाँ पे हासिल करने की नीयत से ना आए। यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे आपके पास ज्यादा पैसे हैं, 2-2 हज़ार का पैकेज लेने के बजाय आप हत्तुल मकदूर जी। तो इस वक्त हमारी अर्ज़ यही है, दोस्तान का कहना यही होता है कि हम इस तरह से आते हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दिन यहाँ पे पैदा कीजिए, बड़े से बड़े होटल को ना पहुँचे। जी, हमारे पास सैयद मुस्तफ़ा साहब है, इटली
सैयद मुज्तबा साहब है इटली से। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हुजूर, कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से इंशाल्लाह? अल्लाह आपको सलामत रखे। इस वक्त आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से नशर होने वाला प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में है, कि जिसका तरीक़ाकार यह है कि यहाँ पे मोमिनीन कॉल करते हैं और अपने आप को 14,000 में से एक स्पॉन्सर की हैसियत से यहाँ अपना ऐलान करते हैं। तो इंशाल्लाह आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के स्पॉन्सर बनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह, मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। और मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि ये जो नज़र नियाज़ आपने की है 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से या अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की दीगर शख्सियात में से किस शख्सियत के साथ आप ख़ास करना चाहेंगे? कोई एक सा नाम ले लीजिए। मैं समझा नहीं हूँ बात कर रहे हैं। जी आप किसी एक मासूम का नाम ले लीजिएगा। मैं समझा नहीं हूँ आपकी आवाज़ अप डाउन हो रही है। आपके अपने मुंह को माइक के करीब करके बात कीजिए, मोबाइल के माइक के करीब करके बात कीजिए। जी मैं आपकी आवाज़ समझा नहीं हूँ। ये कौन सी नजर नियाज की बात कर रहे हैं आप? आप जो स्पॉन्सर करार पाए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के, इस स्पॉन्सरशिप को आप किस मासूम के नाम करना चाहेंगे? जी स्पॉन्सरशिप मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम करना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। माशाअल्लाह, मौला कबूल फरमाए और सदा सलामत रहें। जी इस वक्त आपकी आवाज़, जी सर इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है। ज़रीह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सामने है। अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को देख रहे हैं, सलाम अर्ज़ कीजिए मौला की खिदमत में, और अगर कोई दुआ भी करना चाहे तो दुआ की कबूलियत का मकाम है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जी मैं पहले मौला की बारगाह में सलामत करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सिद्दीक़तुल कुबरा। तो फिर मैं मौला हज़रत अब्बास की बारगाह में सलामत करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। मौला से मेरी दुआ है कि मेरा एक भाई है, बहुत सख्त बीमार है, अलील है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। करबला आने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। अल्लाह उसको जल्द से जल्द मौला उसको बुलाएं, क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो मौला उसको जल्द से जल्द करबला बुलाएं। ज़रीह सामने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और मौला हम हर जगह पर हमारे शाहिद और नाजिर हैं। आपकी दुआ भी मौला ने सुनी, हम भी दुआ गो हैं, और मौला उन्हें जल्द करबलाए मौला आपके साथ आने की तौफीक अता फरमाए, और मौला उनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, और उनको लंबी उम्र अता फरमाएं, और बार बार करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाएं, और मौला आपकी दुनिया और आखिरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ करार दें। जब आपका जी चाहे हमारी दुआएं मौला की बारगाह में तशरीफ लेकर आएं। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा सलामत रहें। माशाल्लाह, बहुत ही जी पूरी दुनिया से सलामत रहें। आप निहायत ही शुक्रगुजार है आपके, और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए, और हत्ता स्पॉन्सर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के बने। सलामत रहिए, मौला के ज़ामान में रहिए इंशाअल्लाह। और 14 मोमिनीन को भी कहिएगा कि वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इस प्रोग्राम में कॉल करें, ताकि वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से जुड़ सकें। ये प्रोग्राम आज इसका 8वां प्रोग्राम है। 6 प्रोग्राम्स और बाकी हैं। इसका दौरानिया 2 घंटे है। इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से 10 बजे के दौरान, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे के दौरान, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के दौरान, बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात 11 से 1 बजे के दौरान। ये 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। आज इसका 8वां प्रोग्राम है। 6 प्रोग्राम और बाकी हैं, इनमें आप कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कॉल करना चाहें तो फुतुरुस प्रोग्राम पाकिस्तानी उसका टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे हैं, और इंडियन टाइम के मुताबिक 11:30 बजे आप इंशाल्लाह कॉल कर सकते हैं। हाजिर खिदमत रहेंगे। सदा सलामत रहे। आपकी कॉल करने का शुक्रिया, और मोमिनीन को भी मौरफ़ी कीजिएगा कि वो भी इसमें कॉल करें। कम अज़ कम 14 मोमिनीन को ज़रूर कहिएगा। सदा सलामत रहें, मौला खुश रखें आपको। जी किबला, जो जज्बा है मोमिनीन का पूरी दुनिया से, ये हमारे सैयद मुज्तबा साहब जो है वो इटली से
कॉल कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया को एक मुट्ठी में बंद कर दिया, वाह सुभान अल्लाह, बेशक यकजा करके रख दिया है। यही है मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम का नतीजा। ज़माने में फ़र्क नहीं रहता, ज़बानों में फ़र्क नहीं रहता, नस्लों में फ़र्क नहीं रहता, फ़कत एक चीज़ रह जाती है, हुसैनियत। सुभान अल्लाह, बेशक ये है कुर्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम का नतीजा। न जाने दुनिया के उन मलऊन अफराद ने किस वजह से अहले बैत अलैहिस्सलाम, किस वजह से तो क्या दुनिया की खातिर है, वाज़ेह है, हसद की वजह से, हाँ, दुनिया की हसद, वजह से, लालच, यानी कुछ उनके पास जो है उससे हसद ही है, ज़ाहिरी बात है, जो अल्लाह ने अता की है उससे हसद के हमारे पास आ जाए। जब तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम्हारा ज़र्फ इस लायक नहीं बना, तो तुम क्यों उस जगह पर बैठ रहे हो जो तुम्हारे लायक, तुम उस जगह के लायक नहीं हो। जी जी बिल्कुल। किबला बल्कि एक किताब लिखी गई है, बड़े मशहूर एक अहले तसन्नुन आलिम दीन है, ताहिर अल कादरी नाम है उनका, तो उन्होंने किताब लिखी है इस उन्वान से, और उसमें वो लिखते हैं कि जो इलाही खिलाफत है वो यही है कि जो मज़हब हक्का वाले जिनको समझते हैं, और ये जो सियासी खिलाफत है जो कि सियासत है, वो यही है कि जो हम उसको समझ रहे हैं। तो ये इस पर वो ख़ुद भी इकरार करते हैं कि हमारे जो सिलसिला है, जो इलाही सिलसिला है, वो ख़ानदान अहलुल बैत अलैहिस्सलाम से इधर उधर जा ही नहीं सकता। और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने अपने से वो बनाए हैं या ख़ुद ज़बरदस्ती जाके बैठे हैं, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि जो असल है वो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अहले बैत अलैहिस्सलाम से कुर्ब मोहब्बतें लेकर आता है, रहमतें लेकर आता है, नजात लेकर आता है, बख्शिश लेकर आता है, मायूसी को दूर करता है। यानी कुरान मजीद ने जिस चीज़ को करने का कहा है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब है। जी सुभान अल्लाह। और कुरान मजीद ने जिसे दूर रहने का कहा है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूरी है, और हाँ जी दूरी है। जो चीज़ नजासत, पलीती, घटियापन है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूरी है, दूर है, वो अहले बैत का बुग़्ज़ है, अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी है। मुनाफिक होता ही वो है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर हो बेशक। हमारे यहाँ कुफ्र से बख्शिश हो सकती है जी, निफाक से बख्शिश नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसी क्योंकि निफाक जो है ये ऐसी जड़ें बना लेता है, इसका दूर होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह के अंदर मुनाफिकीन जो थे ना वो काबिल कबूल नहीं थे। कहीं पे देखें सूरह मुनाफिकून अलग करके बयान कर दी है, ठीक है, ठीक है। तौबा की सूरत जब नाजिल हुई वो कुफार पे नाजिल हो गई, लेकिन मुनाफिकीन के लिए हर जगह के ऊपर लानत, सबो शैतान, इस किस्म की चीज़ें ही नाजिल हुई हैं। बहरहाल हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मोमिनीन को हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से जोड़ना चाहते हैं, और अहले बैत अलैहिस्सलाम से जोड़ने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिका चीज़ों से जोड़ा जाता है। और उन मुताल्लिका चीज़ों में से एक जो इस दुनिया में इस वक्त मौजूद है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप भी है। तो लिहाजा हम चाहेंगे कि इससे भी आप जुड़ जाइए, अपनी मोहब्बतों को, अपने नजरानों को, अपनी अकीदतों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से वसल कीजिए। सामने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर अगर आप टेलीविज़न रोशन कर चुके हैं तो आपके पास QR कोड आ रहा है, तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपकी कॉल मिल जाएगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम से, और आप यहाँ पर आप मुत्तसिल हो सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। और दूसरा तरीका, ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 009647729911424, इस पर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल भी व्हाट्सएप में मिल जाएगी, और आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से कॉल कर सकते हैं। अगर आपके मुल्क में व्हाट्सएप की सहूलत नहीं है, जिस तरीके से काफ़ी अरब ममालिक हैं वहाँ पर व्हाट्सएप की सहूलत इतनी आसानी से नहीं है, मगर ये कि VPN या कोई चीज़ इस्तेमाल करें उससे कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट कॉल भी आप कर सकते हैं। बहरहाल व्हाट्सएप से निस्बतन नॉन कॉस्टली है, तो थोड़ी सी। जी अली अब्बास साहब हुर जो है वो मुल्तान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह? शुक्र मौला, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। इस वक्त आप कॉल कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से नशर होने वाला प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर, जिसमें मोमिनीन कॉल करते हैं और इन 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर की हैसियत से अपना ऐलान करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के स्पॉन्सर बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं एक सवाल आपसे इस उन्वान से भी करना चाहूँगा कि एक तरीक़ाकार हमारा ये भी है कि जैसे 14 के अदद से मुशख़्ख़स है कि जो मोमिनीन बहरहाल जो नियाज़ करते हैं, नज़र करते हैं, जैसे आप स्पॉन्सर बने हैं, तो वो 14 मासूमीन में से किसी एक मासूम के साथ इस नियाज़ को ख़ास कर देता है। तो आप फरमाएँ कि किस मासूम के साथ आप ख़ास करना चाहेंगे? मैं असल में इस वक्त हूँ सफ़र में। फ़कत आप नाम ले दीजिए, बाद में सब सिलसिला टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे तय कर लेंगे। फ़कत आप नाम ले दीजिए, 4 दफ़ा किसी एक मासूम का आप नाम ले लीजिए। मैं सरकार वलीउल अस्र अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। मौला सलामत रखें, सदा सलामत रहें और मौला अपने नासिरीन में आपको शुमार फरमाएं और ज़िंदगी मौत अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत में नसीब हो आपको। इलाही आमीन। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला में है और ज़रिए हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आपके सामने है। बिस्मिल्लाह फरमाए, सलाम अर्ज़ कीजिए अगर कोई दुआ करना चाहे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलाद अल-हुसैन व अला अस्हाब अल-हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्ल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सलामत रहिए आप। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और आप सफ़र में है, मौला आपके इस सफ़र को बेखतर फरमाए इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हमारे ऑपरेटर जो है वो आपके साथ रब्ता कर लेंगे और आपको पूरी जो तरतीब है वो समझा देंगे। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। 14 मेहमानों को और आपसे एक गुजारिश ये है कि अपने दोस्तों और अकारिब में से 14 अफराद के साथ आप इसका तस्करा कीजिए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी तशरीफ़ लाए और इस दस्तरखान नूर पे इंशाअल्लाह हाज़िर हो सके। सलामत रहिए आप। मौला आपको सलामत रखें और आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाएं। आपने प्रोग्राम को अहमियत दी और इसमें कॉल की, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और ये प्रोग्राम 8 दिन हो चुका है, 8 शबें हो चुका है और 6 शबें और बाकी है। 2 घंटे का प्रोग्राम है। इराकी टाइम के मुताबिक 8 से 10, पाकिस्तानी टाइम 10 से 12, इंडियन टाइम 10:30 से 12:30 और बांग्लादेश का टाइम 11 से 1 बजे रात में ये 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। इसमें आप कॉल कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं और मेंबरशिप का ऐलान कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप का ऐलान कर सकते हैं और मौला की बारगाह में आप सलाम भी पेश कर सकते हैं और दोस्तान को भी मुअर्रफ़ी कीजिए, ख़ुद भी शरीक हो जाइए और मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बतें हदिया कीजिए। हम आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं और चाहेंगे आप सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम से, करबला से कनेक्ट करें ताकि आप करबलाई हो जाएं और करबलाई होना हमारे लिए बहुत बड़ा शरफ़ है। बेशक बेशक। और मैं यहाँ पर चूँकि प्रोग्राम का टाइम भी गालिबन ज़्यादा नहीं बचा, इस चीज़ की तरफ भी मैं कहना चाहूँगा कि इंसान जो अपने माल को और जो माली ताउन करता है राह अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है इंसान को कि ये चले जाएंगे तो फिर ये आएंगे नहीं और मैं हाथ मेरा खाली हो जाएगा। ऐसा ना सोचें, बल्कि इस पर यकीन रखें कि जो कुछ आप खर्च कर रहे हैं अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के दर से, जैसे आपने फरमाया कि जो मुख्तलिफ़ रिवायात है, तो इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि उसका एक के मुकाबले में आपको 10 मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आपके रिस्क, आपकी ईमान में और आपके नस्लों के लिए ये जो है वो एक तोहफ़ा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ और बिल्कुल दिल खोल के आप खर्च कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अजर अज़ीम का मुस्तहिक बन सकते हैं। बेशक ऐसा ही है। हम सब मुख्तलिफ़ मुश्किलात रखते हैं, मुख्तलिफ़ तकालीफ़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ देखें कैफ़ियत रखते हैं, मुख्तलिफ़ ज़रूरियात रखते हैं। इन सब को हम चाहते हैं कि गारंटीड हो जाएं जी, ये सब की सब बीमा हो जाएं जी, ये सब की सब इंश्योरेंस हो जाएं ताकि हमसे किसी तरीके से ये परेशानियां दूर हो, मुश्किलात दूर हो, बीमारियां दूर हो जाएं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। तो सैयदना ये कैफियत है हमारी और प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है। जिस तरीके से तो चाहूँगा कि आप बयान फरमाइए कुछ। जी, मैं मुख्तसरन बस आखिर में ये बयान करना चाहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी जो है 14,000
स्पॉन्सर के नाम से इस प्रोग्राम को पेश कर रहा है और इस प्रोग्राम का मकसद दर हकीकत मोमिनीन को ये ऐलान करना है कि आप जो है वो राह अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में अपनी हिमायत को पेश कीजिए। और इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और बहुत सारे मोमिनीन ने बहरहाल ऐलान कर दिया अपने स्पॉन्सर होने का, और आपसे भी यही दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए और ख़ुद यहाँ के 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर बन सकते हैं। नंबर हमारा लिखा हुआ है सफ़े पर, आप जो है स्क्रीन से नंबर को नोट कीजिए और हमारे ऑपरेटर के साथ राब्ता कीजिए, पूरे तफसीलात आपके सामने पेश किए जाएंगे। बेशक सैयदना अहले बैत, देखें हम ये काम जो कर रहे हैं, देखें अपनी ज़ात के लिए कुछ कहना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल अमल होता है, लेकिन अपने दीन के लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए और इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने दीन को बचाने के लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से ज़ियारतों पे आते हुए इंसान को कर्ज़ लेकर आना पड़े तो आना चाहिए। जी बेशक बेशक। इंसान को रास्ते में फ़क्र का सामना हो, कम मायगी का सामना हो, ज़ियारती मामले में शर्म नहीं करनी चाहिए। और इसी तरीके से रास्ते के अंदर आम हालत में आप बने ठने रहते हैं, सफ़र के अंदर बग़ैर इस्त्री के कपड़े भी पहनने पड़े ज़ियारती माहौल में, तो शर्म नहीं करनी चाहिए। कहीं आपको ये लगे कि मैं ये नहीं कर सकूँगा, ये नहीं कर सकूँगा, यहाँ पे आके साफ़ सुथरे रहें, बदबूदार ना रहें। अंदर को नूरानी करने के लिए करबला आना ज़रूरी है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आना ज़रूरी है। प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है और आखिरी वक्त में हम हमेशा कहते हैं अपने वक्त की आखिरी हुज्जत वो जो हमारे माँ बाप पर हुज्जत हैं, हमारे माँ बाप से बढ़कर हैं, हम उनसे राब्ते में रहना चाहते हैं और ये हमारा राब्ता मजबूत होना चाहिए। मजबूत करने के लिए इस राब्ते को बार बार जिक्र करें ताकि हमें एहसास हो कि हम किसी की रैयत हैं, हम किसी से मरबूत हैं, किसी से हमारा ताल्लुक़ है, किसी से हमारा नाता है, कोई हमें देख रहा है, कोई शाहिद हैं जो हमारे आमाल को देख रहे हैं। बार बार जिक्र करें, बार बार जिक्र करें ताकि ये जिक्र सामने आता जाए। आए मिलकर मौला के ज़हूर की दुआ ताकि जिक्र हो जाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।